بس اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے، نبیوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، جو بھی کتابیں 4 نازل ہیں، قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے، اس پر ایمان ہے، اہل بیت صحابہ سب کو مانتا ہوں، اور نبی کی ازواج جو ہیں وہ سب سے پہلے اہل بیت میں آتی ہیں، ان کے بعد باقی سب ہے۔ بس میرا یہی عقیدہ ہے، تو میں اب آپ لوگوں کو سنتا رہتا ہوں، اور بس یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، علی بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ جن کے مذہب میں دوبارہ وغیرہ کچھ بھی ہو ایسا ویسا، وہ تو ساری عمر نہیں رک سکتے، لیکن اس کا حل یہی ہے کہ پھر ظاہری بات ہے کسی نہ ایک انسان کو تلوار تو اٹھانی پڑتی ہے، تو بس اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھی الفاظ سخت ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی الفاظ کا چناؤ واقعی سخت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، اور بس اللہ کے سوا کوئی مدد کے لائق نہیں ہے، کسی اور کو نہ پکاریں، حضرت علی اللہ کے نیک ولی تھے، اور وہ انہیں کہ جب جتنی بھی جنگیں انہوں نے لڑی، جتنے بھی ہیں، وہ اللہ پاک کی مدد سے انہوں نے لڑی، انہوں نے اور کسی سے مدد نہیں مانگی، انہوں نے اللہ پاک سے مدد مانگی، بلکہ انہوں نے تو اپنے بچوں کو یہاں تک کہا ہے کہ میرے جانے کے بعد امام حسن علیہ السلام کو انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ سے مدد مانگنا، اللہ ہے، اللہ کی ذات ایسی جو تمہاری مدد کرے، جب وہ اتنے بڑے الفاظ کہہ کے جا سکتے ہیں نا انسان کو، تو بس اور کوئی بات نہیں ہے، بس میں یہی کہنا چاہوں گا، باقی آپ لوگ کنٹینیو کریں، میں آپ لوگوں کو سنتا رہوں گا انشاءاللہ، اور اپنے علم میں اضافہ کرتا رہوں گا، باقی اللہ پاک غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ اچھا علی بن محمد بھائی، کوئی ادھر بھی سیٹنگ بنائے ہمارے ساتھ نا، مرزا غلام احمد قادیانی کے جو عقائد وغیرہ، اگر کوئی بکس وغیرہ یا نالج کسی طرح کی بھی ہیلپ وغیرہ چاہیے ہو، ادھر بھی تھوڑی سی نظر کریں، کیونکہ تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، تو مل کے کریں گے تو کافی ایک دوسرے بھائیوں کی ہیلپ بھی ہو جائے گی، اور دین اسلام کا کام بھی زبردست ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس کے لیے بہت مطلب میرا دلی خواہشات بھی ہیں کہ اس کام میں شمولیت اختیار کی جائے، لیکن آپ کو عادل بھائی پتا ہے کہ جس کام میں ہوں وہاں پہ اس وقت کوئی نہیں ہے، میرے خیال سے اس جگہ پہ تو کوئی نہیں ہے، اب اس جگہ کو سنبھالنا جو ہے تھوڑا سا مینج کرنا وہ بھی ہے، لیکن میں انشاءاللہ دن سارا دن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ ادھر بیٹھا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، رات کو میں 4 گھنٹے کا 5 گھنٹے کا اپنی لائف کرتا ہوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سارا دن تو آپ بھائیوں کے پاس ادھر بیٹھا ہوتا ہوں، آپ گفتگو کرتے ہیں، مجھے کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، تو انشاءاللہ مزید سیکھتے رہیں گے، قادیانیت کے خلاف اس فتنے کے خلاف ہم انشاءاللہ لڑتے رہیں گے۔ اچھا، میں نے حمزہ بھائی کی گفتگو سنی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ سیٹنگ بنا رہے ہیں، اور ماشاء اللہ ان کو نالج بھی نوٹ یہ کافی زیادہ ہے، اور بولنے کی سپیڈ بھی اچھی ہے، ہم ایکٹیو ہیں ہم۔ یہ تو آپ نے وہ بات کہہ دی کہ جو بہت مشکل ہے، کیونکہ حمزہ بھائی جو ہے وہ ٹک ٹاک چھوڑ کے جا چکے تھے، بہت ریکویسٹ کے بعد ان کو دوبارہ میں نے جو ہے انوائٹ کیا، اور یہ مشکل ہے کہ وہ کسی لائیو پہ آئیں، ہاں میری لائیو پہ وہ آتے ہیں، یا ایک دو اور جو میری اپنی لائیو ہے اپنے بھائیوں کی ہیں ان کے پاس وہ آتے ہیں، لیکن یہ بہت مشکل بات ہے کہ وہ کسی اور لائیو پہ آئیں بیٹھے ہیں۔ نہیں، اس کا یہ ہے نا کہ وہ اپنی لائیو کر لے، ایک ٹائم ہمارے ساتھ سیٹنگ کر لیں کہ جی اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے اگینسٹ چلانی ہے، تو وہ ہمیں سیٹنگ بتا دیں، ہم ان کی بات پہ چلے جایا کریں گے، اور وہ صرف ایک اپنی مرزا ناصر نے پانی پلا پلا مارا، جس ویلے مرزا وہ اگر آپ روپے جواب نہ آئے کسی کو کرتوت نہیں مرزائی تے جے راتی کدے موقع دیندا نا رب تے چلو رب دے ہاتھ وچ سارا عزت تے ذلت تے مرزائیاں نو تے میں ایسا جواب دینا سی کہ کدے تساں بھی نہیں سی زندگی چ سنیا ہونا، وہ جواب تے انہوں نے میں ایسا دینا سی، انہوں نے گھروں میں تیار کیتا سی اس سوال دا جواب، لیکن میں اپنی جڑے علماء نے انہاں دی میں چاہنا کہ بھئی او دا پتہ رزلٹ کی ہوندا ہے، اس مرچ مسالے دا رزلٹ پتہ کی ہوندا ہے، میں ہن ایک فیس بک تو پوسٹ کڈی ہے اینو تلاش کردیاں ایک منڈے نے پتہ کی لکھیا پھر اس مرچ مسالے تو متاثر ہو کے کہ جناب انہیں کیا مرزا ناصر نے کیا کہ تواڈے اپنا مفتی محمود صاحب نو کہ تواڈے تے مولانا قاسم نانوتوی نے گل لکھی ہے، تے پھر آئے مولانا شاہ احمد نورانی اٹھ کے
ਕੇ ਆਏ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੰਜ ਦਾ ਕਾਫਰ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਇੰਜ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਨੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। दोस्तों मैं अभी अपनी ब्राड शुरू करने लगा हूँ टिकटॉक के ऊपर। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबश्शिर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी हम अपने YouTube के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स और फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक के ऊपर लाइव है। दोस्तों से गुजारिश है कि शेयर करें और डबल टैप जारी रखिएगा। किसी ने कोई कॉल करनी हो तो वो कॉल कर सकते हैं, और ये लिंक मैंने शेयर किया है, इस लिंक पे क्लिक करके आप कॉल कर सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कॉल करें जी, कॉल करें। इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी के स्टूडेंट और इंजीनियर मिर्जा गुलाम कादियानी के स्टूडेंट दोवें कॉल पा दियो कट्ठी, देखी जाएगी। जी उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद मोहतरम जल्दी बस दुआ दे दो ताकि फिर किसी कॉल ना चुको। जी अल्लाह सलामतियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आओ वही कॉल करो, वही कॉल करो। अभी हम YouTube के ऊपर भी लाइव हैं, टिकटॉक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हर जगह के ऊपर लाइव। हसन साहब की आईडी से कोई आए हैं। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद हसनुद्दीन भोनगिर इंडिया से बात कर रहा हूँ। हसन इंडिया से? जी भोनगिर, आप जो मौजूद को जहाँ से आप लाइव लेते हैं ना, उसी लोकेशन से मैं बात कर रहा हूँ। किनको लाइव में लेता हूँ? वो पागल आदमी है ना, इंडियन मेहदी का दावा करता है जो। हाँ वो मौजूद हाँ। एक मिनट अभी मैं। हाँ जी फैजान भाई अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही फैजान भाई आपकी, आवाज नहीं आती पई। कोई इशू है, आवाज नहीं आती पई। चेक करो। सही हो गया। करो यार, कोई कॉल करो टिकटॉक के उत्ते। कोई गलबात सुनाओ इंजीनियर मिर्जा साहब दी, इंजीनियर मिर्जा जेलमी साहब दी। कोई कहानी शानी सुनाओ, कोई गलबात सुनाओ, कोई गाल शाल कड्डो। आ जाओ भाई आ जाओ। गालां कड्डन वाले सारे इकट्ठे हो जाओ एक जगह पे, जल्दी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लखा दरूदो सलाम आले नबी औलादे अली ते। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। की हाल है गुलाम मुस्तफा? जी साडे मोहतरम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थल्ले कालां दा ध्यान रखिया जे ते
कॉल कोई आई थे, बल्कि कमेंट म्यूट कर देने हैं, की ख्याल है? कमेंट कर देने हैं बंद, ताकि जिन्हें कोई गुस्सा शुस्सा करना है वो लाइव आके कढ़े। चलो हजरत अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। हसन जी माफी चाहता हूँ, अभी मैं दुकान पर था इसलिए मैं बाहर आ गया। जी, वो आप मौजूद इंडियन से आप जो मुनाजा करते हैं ना, आई थिंक अक्टूबर में आप किए थे। इंडियन मौजूद। आवाज आपकी कट रही है, आवाज नहीं सही आ रही। अभी आ रही है? जी बोलिए। मौजूद इंडियन जो है वो भुवनगिर, जो मेरा जो मैं जहाँ पर रहता हूँ ना, वहीं से एक 3-4 किलोमीटर दूरी पर रहता है वो। अच्छा, वो जो है ना, वो एक एक्चुअली उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इसने जो है ना मेहदी का दावा किया है और बहुत सारे ये दावे करते रहता है। और अभी कोई अगर आप जाकर उसको पकड़े और मारे ना, तो फिर वो अपने आप को पागल साबित करेगा। विल भी क्या कहते हैं, वो अपने आप को मेंटल पेशेंट साबित करेगा। ये करता है। और वो जो है ना, इससे 7-8 साल पहले यहाँ के लोग मिलके जाके मारे थे, मुफ्ती साहब वगैरह जाके मिलके मारे थे। वो जो है ना, जब माफी मांग लिया, लेकिन 7-8 महीने के बाद फिर से शुरू किया हो, ये भी है। उसका पूरा काम यूट्यूब पे ही रहता, और ये बाजार में और मार्केट में जो है ना, अपने ऊपर मास्क और एक क्या बोलते हैं उसको, रुमाल बांध कर घूमता है। मैं चेहरा भी नहीं दिखाता बाहर। अच्छा, उसके वो अपने सारा बच्चे हैं, वो आप उसका सारा तारुफ जी। पता है। कोई बात करे, कोई बात सुनाइए, कोई ये सब हाँ, चीजें मैं ये बोलना, जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप उसको जो है ना ज्यादा उसको, आई मीन सॉरी टू से, लेकिन आपको जो है ना उसको ना स्ट्रीम पर ना लाए, क्योंकि वो एक किस्म का उसको एक प्रमोशन मिल रहा है उसको एक किस्म ये का। मशवरा देने के लिए आप आए हैं। जी, क्योंकि वो जो है ना उतना मशहूर भी नहीं है यहाँ पर, कोई पहचानता ही नहीं उसको ऐसा। ठीक हो गया, सही हो गया, आप जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे आप उसको लेके आ रहे हैं इस तरह बिल्कुल से। ठीक हो हाँ, गया। आपने बिल्कुल बड़ा जी, जबरदस्त मशवरा दिया है, तो इस पर गौर करेंगे हम, इस मशवरे पर। जी, उसको कोई पहचानता ही नहीं भुवनगिर में, तो उसको कोई जानता तक नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, शुक्रिया मुस्तफीमा। हाँ ठीक हो गया, कोई बात नहीं, इस पर गौर करेंगे हम इंशाल्लाह। और कोई बात कहेंगे आप? नहीं मुफ्ती साहब, मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फिर नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ के सुनिए। ठीक है। हाँ जी, कोई टिकटॉक के ऊपर भाई आओ यार, कोई तबलीग करो भाई, तबलीग करो। यूट्यूब के ऊपर भी आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूँ। दोस्त कह रहे थे लाइव नहीं आते तुम। काशिफ भाई आ गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मुहतरम कैसे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मिस्टर किलर साहब आए हैं जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम हजरत, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जी मुफ्ती साहब, मैं आपका बहुत बड़ा शागिर्द समझे, मैं आपको बहुत सालों से सुन रहा हूँ। अच्छा, और मैंने बहुत बार कोशिश की आपसे बात करने की, लेकिन कभी आपसे राब्ता हो नहीं पाया। मैं इंडिया से हूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो मैंने जो आपकी काविश देखी है कादियानियों के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि दौरे जदीद में आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता ये काम। तो आप ये करते रहें। मैं एक चीज ढूंढ रहा हूँ बहुत टाइम से। मैं सुन्नी हूँ, सही लकीदा। जो हमारे जो सुन्नी प्लेटफॉर्म से जो है ना एक काम नहीं हो पा रहा है, वो ये कि जो मुल्हिद वगैरह हैं या फिर नॉन मुस्लिम है, उनके खिलाफ जो है एक मुहिम चलनी चाहिए। वो हमारे सुन्नी प्लेटफॉर्म से नहीं चल पा रही है, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैंने जितना भी देखा है इंटरनेट पे, वो जो है मतलब जो बदमज़हब लोग हैं या इस टाइप के लोग हैं वो ही कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी सुन्नी टीम है उनको भी इस काम में आना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है मुलीदों का दौर और जो है इस्लामोफॉब्स का दौर बहुत ज्यादा है। खास करके इंडिया में तो ये चीज बहुत तेज हो गई है।
تو ایک حضرت ایک ایسا بھی پلیٹ فارم تیار کیا جائے یا شروع کیا جائے جہاں سے جو ہے اسلام و فوبس کو جو ہے کاؤنٹر کیا جائے. میں بھی بول لوں. جی حضرت. جی مائک میوٹ کر لیں. اچھا وہ اصل میں یہ ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی کالر آئے, میں کال لیتا ہوں آپ لوگوں کی. ڈبل ٹیپ کریں اور شیئر کریں بھائی. وہ کہتے ہیں لکلی فن رجال, ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں, وہ اس فن کو بہتر جانتے ہیں. تو اس کے لیے علماء کی توجہ دلائیں, علماء کو جا کے کہیں, ان کو کہیں جا کے ان کے اداروں میں چلے جائیں, ان سے ملاقات کریں, ان کی توجہ اس جانب کروائیں. میں تو دیکھیں ایک موضوع کے اوپر بات کر رہا ہوں اور ایک موضوع کو لے کے چل رہا ہوں. اب سارے موضوعات کا جناب احاطہ کرنا میرے لیے مشکل ہے. بندہ ایک اتنے موضوعات تو مختلف محاذات کھولنا میرے لیے بہت مشکل ہے. کر سکتے ہیں ہم, کوئی ایسا مشکل نہیں ہے, لیکن وہ پھر کام صحیح نہیں ہوگا. فیضان مائک میوٹ کریے. تو یہ ہے کہ علماء کرام کی توجہ اس جانب کرائیں. اصل میں رولا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایتھیسٹ کے رد کے اوپر کام کر رہے ہیں, لیکن وہ علماء نہیں ہیں, وہ بیچارے عام دنیا دار لوگ ہیں جو اپنے تئیں لگے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں. علماء کرام جب سامنے آئیں گے نا, تو ایک عالم کی وہ جو ہوتی ہے ضرب ہوتی ہے, وہ سنار کی ہزاروں ضربوں سے باری ہوتی ہے. 100 سنار کی ایک لوہار کی. تو علماء کرام کو آپ جا کے ریکویسٹ کریں آج جانا. تو جب تک علماء کرام سوشل میڈیا کے اوپر نہیں آئیں گے, بنفس نفیس کام مشکل ہو جائے گا. ہاں یہ جو اسکول کالج کے بچے بچیاں ہیں وہ تو لگے ہی ہوئے ہیں, پھر انہوں نے تو پھر کرنا ہی کرنا ہے. جتنی ان کی ہمت ہے, جتنی طاقت اور بساط ہے, وہ لگے ہوئے ہیں, انہوں نے جاری رکھنا ہے. ڈبل ٹیپ کریں یا ٹک ٹاک کے اوپر ڈبل ٹیپ کریں, اور جس نے کال کرنی ہو کال کر سکتے ہیں. جی سمجھ آ گئی آپ کو مسٹر کلر؟ جی حضرت, آپ نے جو بھی مجھے کیا کہتے ہیں وہ آپ نے جو بھی بتایا میں سمجھتا ہوں, لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو چھوٹی لیول کے عالم ہیں وہ لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہیں, اور ان سے عموماً ایسا بہت مشکل ہے ملنا, تو ملنا ہو نہیں پاتا. اب کچھ لوگوں سے میں نے ڈسکس کیا, جھوٹ نہیں بول رہا, تو وہ لوگ بولتے ہیں آپ ان چیزوں میں نہ پڑھو تو زیادہ بہتر ہوگا. یا کچھ لوگوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ آپ خود کیوں نہیں کرتے. تو میں نے کہا حضرت میں تو اپنے لیول سے کرتا ہی ہوں, لیکن مجھے جو ہے حدیث کا فن نہیں ہے. جو بہت سارے اسلام فوکس کے ایسے کوشچن ہوتے ہیں, جیسے کہ سلیوری سسٹم ہے انڈیا میں, جو انڈیا کہہ رہا سوری اسلام میں جو باندھی کا سسٹم دیا گیا ہے, اس کو ایکسپلین ہم لوگ تو میں تو کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ مجھے نہ تو قرآن کی تفسیر میں اتنا فن ہے نہ اور حدیثوں کا فن ہے. تو میں ان چیزوں کو کیسے ان کو بتا سکتا ہوں. تو یہ کام جو ہے وہ عالم ہی کر سکتے ہیں. اب جیسے آپ ہیں, آپ آج لائیو آئے, میں نے دیکھا تو میں آپ تک پہنچ گیا. اب ہمارے جو ایسے عالم ہیں جو ان چیزوں کو اچھے سے بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں, تو ان کا لائیو سیشن وغیرہ ہوتا بھی نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے ان کو بولیں کہ حضرت یہ ضرورت پڑ رہی ہے, آپ ان پہ بھی توجہ فرمائیں. بس یہ جو تھا ایک میں نے عرض کر دی ہے, یہی مسائل ہے نا, یہ مسائل ہاں ہے بس. تو اب جو ہے میں تو اپنے لیول سے کرتا ہوں الحمدللہ. کتنے ایسے بھی
مسلمس مطلب اپنے بچے ملے میری عمر کے ہی جو الحاد کی طرف جا رہے تھے. میں نے کوشش کی, 2-3 لوگ واپس بھی ہوئے لیکن بہت سے لوگ چلے گئے, تو تھوڑا افسوس ہوتا ہے. اور نہیں افسوس کرنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے, اتنی ٹینشن نہ لیں, کیونکہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ یہ فتنہ آنا ہے اور فتنہ بڑھنا ہے, قرب قیامت میں فتنہ بڑھنا ہے. تو یہ فتنہ بڑھنے کی وہ جو حضور نے خبر دی تھی وہ تو ہو رہا ہے. مخبر صادق نبی غیبداں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اٹل ہے, اور اس کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے. جی حضرت, وہ تو میں اس بات سے آپ کی اتفاق کرتا ہوں, لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے نا, وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگتے ہیں. جو اپنے بندے ہوتے ہیں بعد میں جا کے بہت مطلب اتنا میں بیان نہیں کر سکتا, ایسے ایسے القاب اور الفاظ اسلام کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے, تو پھر وہاں پہ جو ہے یہی بات ہے نا, یہی بات ہے. افسوس سارا آپ نے اپنے دامن میں رکھا ہوا ہے. افسوس جن کو کرنا چاہیے تھا, افسوس جن کو کرنا چاہیے تھا وہ افسوس لے نہیں رہے. آپ کہہ رہے میں نے بھی کہا ہے ان کو جا کے وہ نہیں سن رہے, تو اب کیا کیا جائے؟ کوئی مسئلہ نہیں, پھر کیا ہوا, اللہ کے معاملات ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. اپنے اپنے تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں, آپ جاری رکھیں. جی حضرت آپ دعا کریے کہ اللہ جو ہے مجھے اس مقام تک پہنچائے کہ میں اپنے لیول سے کچھ کام کرتا رہوں, کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں اور فیوچر میں بھی اس کو مطلب اپنے علم کو بھی بڑھاؤں گا, اور اس کو بھی جس لیول تک بھی جا سکتا ہے میں لے کے جاؤں گا. تو آپ سے میرے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ خیر فرمائے, اللہ سلامت عطا فرمائے. احمد رضا آیا ہے جی, بہت شکریہ. مائک میوٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا حال چال ہے, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, آپ سنائیے خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, الحمدللہ. ہاں جی, کوئی نویں تاریخ سناؤ نا. ایک دوست ادھر ٹک ٹاک تے آئے نے, انہوں نے کال تے ذرا لے لیں, کی کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. شور تو نہیں آ رہا؟ جی بات کریں آپ. اچھا, میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو آیت ہے قرآن پاک میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, تو ایک بندے سے بات ہوئی تھی, وہ بول رہا تھا کہ جی وہ بول رہا تھا کہ جو خاتم ہے اس کا معنی ہوتا ہے مہر, کسی بات کی تصدیق کرنے والا. اچھا, تو یہ جو خاتم النبی مہر کا مطلب ہوتا ہے بات کی تصدیق کرنے والا. جی جی جی, مہر کا مطلب ہوتا ہے بات کی تصدیق کرنے والا. جی جی جی, یہ کس نے کہا؟ یہ وہی بتا رہا تھا. کون وہی؟ جیسے وہ خاتم اللہ علی قلوبہم. نہیں, وہ کون, آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ قادیانی ہی تھا. قادیانی کہہ رہا تھا. اس نے کوئی حوالہ دیا تھا آپ کو؟ نہیں, اس نے کہا تھا کہ اس کی جو لغت کے اندر لکھا ہوا ہے نا, وہ یہ بھی لکھا ہوا ہے, خاتمہ کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا. جیسے وہ اس نے یہ آیت پیش کی, خاتم اللہ علی قلوبہم. سنیں نا, تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ چلیں, تھوڑا میرے ساتھ ساتھ چلیں. اس نے آپ کو کہا کہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر, یعنی تصدیق کرنے والا, ایسے ہی ہے؟ جی جی جی. تو آپ نے ان سے حوالہ نہیں طلب کیا؟ نہیں, میں نے حوالہ نہیں کیا. کیوں نہیں, اس وقت یہ بات ذہن میں نہیں تھی. اچھا, مطلب آپ کو کوئی بھی چیز کا ترجمہ کر کے بتا دے اور آپ پھر آگے سے حوالہ طلب نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے ذہن میں نہیں رہتی یہ بات, ایسا ہی ہے؟ نہیں, آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے, انشاءاللہ ضرور جو ہے نا اس کا نیکسٹ ٹائم وہ کیا بتائیں. نہیں, اتنی بڑی بات ہو گئی ہے,
और आप से ये जुर्रत नहीं हुई कि आप कम अज कम उससे हवाला पूछें। ऐसा ही है जी, ये मेरी कमजोरी है। हाँ, तो अब तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। आप वो शिकवा शिकायत मेरे पास क्या लेने आए हैं, जब आप जी इतनी मैं बड़ी मिस्टेक करके आ गए और मेरे पास अब क्या लेने आए हैं, मेरे बारे क्या आप जी। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि इसका खातम का असल मतलब क्या है, और आप इसके ऊपर जो ना नहीं वो ही तो मैं कह रहा हूँ कि जो हवाला आपने उससे तलब करना था वो आप मुझसे तलब करने आ गए। नहीं, मैं इस आपकी जो है ना वो हमजा राय साहब जानना माइक चाह रहा म्यूट हूँ, करें, यहाँ जो कुरान हमजा पाक साहब माइक म्यूट करें जी। अच्छा आगे बात करें। जो कुरान पाक की जो रोशनी में है इसका माना, वो आपसे जो है ना वो उसके ऊपर वही तो मैं कह रहा हूँ, जो चीज आपने जो डिस्कस करनी थी उस बंदे के साथ वो आप मेरे साथ करने के लिए आए हैं। देखें मैं कोई उस तरह तो नहीं, मतलब मेरा वो मकसद नहीं है। नहीं मेरा भी वो मकसद नहीं है, मैं कब कह रहा हूँ मेरा वो मकसद है, मेरा ये वाला मकसद है कि आप उनसे जो डिस्कस करनी थी उस बंदे कादियानी के साथ वो आप मेरे साथ कर रहे हैं डिस्कस। मैं इसका जवाब कैसे दूं? हाँ ये मेरी कमजोरी है, वो मैं सुनना चाह रहा हूँ। कमजोरी है, मेरी गलती। आप क्या जवाब देना है मेरी गलती जी? जी ये मेरी कमजोरी है, मेरी गलती है ये वाली। अच्छा उसूली तौर पे अब ये बनता है कि आप वो चीज मुझसे पूछें। नहीं, मैं इसके ऊपर आपकी राय जो है ना वो पूछना चाह रहा हूँ कि खातामा का असल माना क्या है, या फिर जो खातामा। अच्छा चंद सवालात के मुझे जवाब चाहिए। ये किस जगह पे बात हुई है? ये इधर टिकटॉक पे हुई थी। टिकटॉक पे कोई ब्राड चल रही थी कादियानियों की? जी वो एक ब्राड है बिनते मरियम के नाम से। ठीक हो गया, कुरान के ठीक हो गया। थोड़ा सा मेरे साथ साथ चले। आपको इस खत्मे नबूवत के मौजू के ऊपर कमांड तो नहीं है, जैसे आप सवालत कर रहे हैं, आपको जब पता ही नहीं है तो आप क्या लेने गए थे उनकी ब्राड के ऊपर? नहीं, मैं वैसे ही बैठ के सुन रहा था उनकी। मैं नहीं, वो ही तो मैं ही कह रहा हूँ कि आप वैसे बैठ के क्यों सुन रहे थे वहां, जब आपके पास इल्म ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, उस मसले के बारे में पता ही नहीं है, आप वैसे बैठ के क्यों सुन रहे थे? बस ऐसी हुई कि इस्लामिक ब्राड लगी थी, वहां नीचे बैठ गए वहां पर। अच्छा ठीक है, अब माइक म्यूट कर लो। जो सवालात मैंने करने थे मैंने कर लिए। देख लिया साहिबान, ये मामलात है, ये हालात तो वाकयात है कि हमारे दोस्तों के पास इल्म नहीं होता, और अगर जिनके पास इल्म है वो सतही इल्म होता है, चंद चीजों के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात होती है, इसके अलावा कोई ज्यादा वसी तर मालूमात नहीं होती। और नताइज फिर ये होते हैं जो अभी हमने एक नमूना आपके सामने पेश किया है और आप देख सकते हैं। भाई जब तुम्हें इल्म ही नहीं है उस चीज के बारे, तुम क्यों जाते हो ऐसी ब्रांडों के ऊपर या सोशल मीडिया की ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर क्यों जाते हो, उसके हिस्सेदार क्यों बनते हो? इंजीनियर मिर्जा जेलमी जब कोई गुफ्तगू कर रहा होता है, हमारे वो मुसलमान बोले वाले जिनको इल्म ही नहीं होता वो क्यों सुनते हैं? वो आप उनका एक व्यू बढ़ा रहे होते हैं, उनकी व्यूवरशिप बढ़ा रहे होते हैं वहां पे बैठ के आप। इसी तरीके से कादियानी है, एथियस्ट है, ये कुरानिस्ट है, ये मुनकरीन हदीस है, ये और दीगर जो लोग हैं, उनकी ब्राडों के ऊपर आप क्या लेने के लिए जाते हैं जब आपको उस चीज के बारे में इल्म ही नहीं है यार। अभी यहाँ अलीदा मलंग एक दोस्त है हमारा टिकटॉक का, वो उसकी ब्राड जारी थी तो उसके ऊपर मेरे मौजू से हट के गुफ्तगू हो रही थी। मैं नीचे बैठ के सुन रहा हूँ, मैंने इंटर होना भी चाहा, मैंने कहा यार मेरे मौजू के मुताबिक ये बात ही नहीं है तो मैं क्यों इंटर हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। और ना ही मुझे उसके बारे में कोई इतना खास इल्म भी नहीं है, मैं ऐसे जाके बीच में निन्नो ले लूं। तो कुछ आप हजरात कुछ मेहरबानी किया करे, जब आपको इल्म नहीं होता तो आप मुफ्ती साहब माइक इजाजत चाहता हूँ, बात सुने, इजाजत चाहता हूँ। बात मुझे कर लेने दे, आप बात में कर लीजिएगा। नहीं मैंने बात नहीं करनी,
بڑے بھائی میں اجازت چاہتا ہوں، آیا تھا ماشاءاللہ سے، میں نے نماز پر جانا ہے، اس وجہ سے اجازت چاہتا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ وہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بندہ براڈ ویسے ہی چھوڑ کے چلے جاتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ نہ ہی آپ حضرات ہماری اجازت سے آتے ہیں، نہ ہی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی خاص، جب جی چاہے آئیں، جب جی چاہے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا تو گزارش یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے، کسی موضوع کے بارے آپ کا علم سطحی ہو، ننو نہ لیا کریں، مہربانی کیا کریں صاحبان۔ یہ وہ دور شروع ہو چکا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا فتنے ایسے برسیں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ فرمایا اپنے ایمانوں کو بچا لینا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ تمہیں 7 کوٹھریوں کے اندر چھپ کے اندر سے کنڈیاں لگانی کیوں نہ پڑے، لیکن اپنے ایمان کو بچا لیں۔ تو فتنے کا دور ہے، بچائیے اپنا ایمان، خود بچانا ہے بھیا، آپ نے کوئی کسی کا ایمان کے ٹھیکیدار نہیں ہے۔ اور جو جاتا ہے، جو کفر میں جاتا ہے، اس کو پیچھے آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کے پچھواڑے کے اوپر لگائیں ایک زور کی، اس کو کہ نکل تو یہاں سے، ابھی نکل، جو تو نکل جانے اب نکل۔ کوئی ہم کسی کے ایمان کے کوئی بھائی حفاظت کے ٹھیکیدار نہیں ہے۔ جس نے ایمان کو، اسلام کو کوئی ایسے سمجھا ہوا ہے یہ ہلکی سی چیز ہے، اس کو کہ ایمان اور اسلام کی قدر و قیمت کا نہیں پتا، اس کو ٹھڈا لگا کے نکال لے، نکل یہاں سے، کوئی تیری ضرورت نہیں ہے۔ وہ گود میں اٹھایا ہوتا ہے نا وہ ماں نے بچے کو، تو بچہ وہ کہتا ہے امی میں ڈگن لگ گئی، امی میں ڈگن لگ گئی، ماں کہتی نہ میرا پتر، نہ میرا پتر، نہ میرا پتر نہ ڈگی، اور پھر کہ نہیں میں ماں ڈگن لگ گئی تھلے، ماں نے اٹھا کے پھینک دیا ڈرم، ہے پی آئی، پھر کہتا آئی ہے ماں پیڑ ہوئی ہے، وہ ہے یہ، وہ گرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کو کہ نکل یہاں سے۔ مفتی صاحب اس پہ گفتگو فرمائیں گے آپ خاتم النبیین پہ، کیونکہ جی وہ قادیانیوں سے کریں گے گفتگو، قادیانی جب ہمارے سامنے آئیں گے نا وہ کریں گے، جی وہ آپ سے نہیں کریں گے، آپ سے کوئی ہمارا توقع نہیں بنتا آپ سے یہ گفتگو کریں۔ چلیں اس کا جو ہے وہ لفظی معنی ہمیں بھی بتا دیں۔ جی وہ قادیانیوں کو بتائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ پہلے ایک مجھے ویڈیو دکھانی پڑے گی، پھر اس کے اوپر تبصرہ میں کر دیتا ہوں۔ ہاں یہ ہے، سنیں ویڈیو سنیے۔ یہاں پہ ایک منٹ میں سکرین شیئر کر لوں۔ اللہ اکبر، یہ لیں سنو جی۔ قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں۔ ایگری اسلام کی خدمت ہے، قرآن کا ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے، ویسے تو میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں، قرآن کے ترجمے میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا۔ یہ کہیں گے کہ قرآن ترجمے سے ہی پڑھنا چھوڑ دیں، کہ ڈوڑا روند مار دو یارا، پیٹ سے آپ آ کے بیٹھ گئے ہو، یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے قرآن ترجمے سے پڑھنا، تو یہ 2 نمبری چھوڑ دیں۔ اور پھر میں نے دیکھیں بارہا یہ بات کی ہے، آپ ان سے بھی جا کے قرآن کا ترجمہ کروائیں نا، اگر ان کو اردو یا انگلش آتی ہو، وہ وہی ترجمہ کریں گے جو قرآن کی عربی لنگوسٹک کا بنتا ہے۔ ترجمے میں کون کیسے بدل سکتا ہے مجھے بتائیں، تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کہ ترجمے بدل گئے؟ 8 ٹرانسلیشنز آف قرآن اور علماء کا دھوکہ، یہ بیسیکلی رنگ میں بھانگ ڈال رہے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں، اور یہ قرآن کے دشمن ہے کہ جی وہ ترجمے کون سا ترجمہ بدلا ہے؟ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو، اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے۔ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے، ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا، اہل سنت نے، اہل تشیع نے اس کا ترجمہ بالمفہوم کر دیا، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے، بالمفہوم ترجمہ یہ درست ہے تشریح کے طور پہ، لفظی طور پہ یہ ترجمہ نہیں ہے، لفظی طور پہ خاتم مہر کو کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا نبوت کی مہر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین،
محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی 92 آپ نے سن لیا. یہ آپ متفق ہیں مرزا جونیئر نے یہ جو بات کی ہے؟ نہیں میں تو اسی بات کا قائل ہوں کہ ہمارے نبی نہیں، اس نے اس ویڈیو کے اندر کون کون سی غلطیاں کی ہیں؟ جی اس کا وہی عقیدہ وہ بیان کر رہا ہے کہ جو اس نے کیا تھا یا جو قادیانی کہتے ہیں کہ اس سے مراد مہر ہے. اچھا، یہ ایک غلطی تو یہ کی کہ خاتم کا ترجمہ انہوں نے کیا جی نبیوں کی مہر، یہ کی ہے. جی اچھا، ایک بات. دوسری بات کون سی غلط کی ہے؟ دوسری بات مطلب یہ جو ہمارے علماء کو اس نے غلط بولا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا ترجمہ کیا. یعنی علماء کرام نے ترجمہ غلط کی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. دوسری یہ بات ہے. اور کوئی بات غلط کی ہو؟ جی وہ میرے ذہن میں نہیں ہے کوئی بھی ایسی بات. اچھا چلے ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو دلائل دینے لگا ہوں کہ مرزا جونیئر جیلمی نے یہ جو ڈرامہ کیا ہے کہ قادیانیوں نے خاتم النبیین کا ترجمہ کیا. مائک میوٹ کریں بھائی. خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہے نبیوں کی مہر. تو اس کو اب میں غلط ثابت کرنے لگا ہوں کہ قادیانی ترجمہ کیا کرتی ہے. یہ مرزا جونیئر جیلمی نے ان قادیانیوں کو بھی چونا لگا دی ہے. یہ لے یہ شیطانی خزائن ہے جلد 3 صفحہ 431 کے اوپر وہی آیت لکھی ہوئی ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا. وہ مرزا قادیانی نے ترجمہ اس کا ختم کرنے والا نبیوں کا کیا. مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے قادیانیوں نے ترجمہ کیا نبیوں کی مہر. کوئی سمجھ آئی یہ بات کی کہ نہیں سمجھ آئی؟ جی ادھر ہی وہ جھوٹا مطلب ہو گیا کہ یہ اس کا جھوٹ ہے کہ اس نے یہ بولا کہ انہوں نے ترجمہ یہ کیا اور بلکہ یہ تو اس کا اپنا ترجمہ ہو گیا نا. ہاں یہ اس کا اپنا ہو گیا. یہ بلے فیضان کیوں کیا آپ کیا سمجھیں؟ فیضان تھوڑا آپ بھی ساتھ ساتھ چلے. مائک میوٹ ہٹائے نا. فیضان آواز نہیں آ رہی. کی رولا ہے تینوں یار تو فیضان ہیڈ فری لا لے. اچھا مفتی صاحب میں نے ایک عرض کرنی تھی. میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں نیچے بیٹھ کے. میں بھی نیچے جاؤں گا. میرے لیے دعا کیجیے گا. مدینہ شریف کا عمرے کا ویزا لگا ہوا ہے 7واں ہو گیا تو دعا کر دیجیے گا حاضری وہاں سے آ جائے تو حاضری ہو جائے. لیکن 7واں ہو گیا ابھی تک حاضری نہیں ہوئی. میں ابھی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں. میں پاکستان آ رہا ہوں. میں نیچے بیٹھ کے آپ کی گفتگو سن رہا ہوں. اللہ السلام. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ اس نے یہ جو گپ ماری. اگلی بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا یہ جو کہہ رہا ہے لفظی ترجمہ تو قرآن کے اندر لفظی ترجمہ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے شرعی ترجمے مراد ہوتے ہیں. لفظی ترجمے مراد نہیں ہوتے. یہ قاعدہ کلی ہے. کوئی بھی اٹھ کے لغت ایک طرف رکھ لے دوسری طرف قرآن رکھ لے اور کہے جی قرآن کی یہ ترجمہ لغت کے اندر سے میں تلاش کروں گا, ایسا یہ قاعدہ کلی ہی نہیں ہے. صلاۃ کا ترجمہ ہے دعا کرنا. لغت کے اندر تو دعا کرنا لکھا ہوا ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں, آپ وہ نماز پڑھتے ہیں باقاعدہ, جیسے جو نماز آپ لوگ یہ جو طریقہ ہے تمام ارکان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ ان ارکان مخصوصہ کے ساتھ نماز ادا کرنے کا نام صلاۃ ہے. لغت کہتی ہے کہ دعا کا نام صلاۃ ہے. بتائیے لغت کی مانیں گے کہ شریعت کی مانیں گے؟ تو شرعی مفہوم مراد ہوتا ہے نا, لغوی مفہوم تو مراد نہیں ہوتا. تو یہ قاعدہ کلیہ ہے, قرآن کی لغت نہیں دیکھی جاتی. یاد رکھیے گا یہ قاعدہ کلیہ. اگر لغت کی بھی بات کر لیں ہم تو آ جاؤ لغت کی طرف آ جاتی ہے. یہاں میں چند لغات پیش کر رہا ہوں اور دیکھتے ہیں لغت کیا کہتی ہے.
और लुगत ने खातमन नबीयीन का तर्जुमा क्या किया है। मेरे सामने ये यहाँ लुगत खुली है, अस्सिहा ताजुल लुगा, सफा नंबर उसका 1908 है और अल जुजुल अव्वल है। तो यहाँ पर भी खत्म का और खातम का ये लुगात बयान की गई हैं। तो इन्होंने यहाँ पर वो लिखा है कि ये देखिए कि मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबियाई अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ये किसकी लुगत बताई है इन्होंने, खत्म की और खातम की। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ये अल खातमु वल खातिमु बिकसरी ताई व फतही हा, ये ता के कसरा के साथ और उसके फतह के साथ ये दोनों तरह आता है। तो इसके आखिर के अंदर वो कहते हैं, ये देखिए कि खातिमतु शैई आखिरुहु, किसी चीज का जब खात्मा हो जाता है उसको खातम कहते हैं, या जो चीज किसी चीज के आखिर में आती है उसको खातम कहते हैं। उनकी मिसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दे रहे हैं। अगली लुगत है अल कुल्लियात मतबुआ मुअस्ससतुर रिसाला और सफा नंबर 431। तो वो भी यहाँ पे अल खातिम बिकसरी ताई, ता के कसरा के साथ आता है, तो उसकी लुगत बताते हो वो कहते हैं व तस्मियतु नबीना, ये तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, खातमुल अंबिया लिअन्नल खातम आखिरुल कौमी, कि ये जो खातम होता है उसको कहते हैं जो कौम के आखिर में आए। काल अल्लाह ताला, तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबी। ये देखिए वो आयत सूरह अहज़ाब की आयत 40 पेश करके वो कहते हैं ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी है, इससे मुराद आखिरी है। किताब का नाम है, लुगत की किताब है अल मुहकम वल मुहीतुल आज़म, दारुल कुतुबुल इल्मिया मतबूआ अल जुज़ुल खामिस 5वीं जिल्द सफा 156। यहाँ पर भी देखिए वो ही खातम की लुगात बयान करते हुए कहते हैं कि सूरह अहज़ाब की आयत 40 इन्होंने लिख के कहते हैं आई, यानी आखिरुहुम, जो नबियों के बिल्कुल आखिर में आता है उसको कहते हैं खातमन नबियीन। अल मुफरदात फी गरीबिल कुरआन अल जुज़ुल अव्वल सफा 190, सूरह अहज़ाब की आयत 40 लिख के कहते हैं लिअन्नहु खातमन नबुव्वा, क्योंकि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत को खत्म कर दिया, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, यानी नबूवत तमाम हो गई। वई तम्महा, कि आपने नबूवत को तमाम कर दिया, मजी ही के मजीद कोई नबी आ सके। अतुरासुल अरबी का मतबुआ और किताब का नाम है ताजुल उरूस, जिल्द 16 सफा 45, ताजुल उरूस। वो कहते हैं अल खातम आखिरुल कौमी कल खातिमी, तो अल खातम और अल खातिम दोनों एक ही हैं। इसका मतलब ही ये होता है कि कौम का आखिरी फर्द। व मिनहु कौलुहु ताला, अल्लाह ने इसी वजह से तो फरमाया खातमन नबियीन आई, यानी आखिरुहुम, यानी नबियों के आखिर में आने वाला। तो ये देखिए वो आखिरी तर्जुमा कर रहे हैं, ये लुगत पेश कर रहा हूं। लिसानुल अरब है मतबुआ दारू सादिर बैरूत अल मुजल्लद असनी अशर 12वीं जिल्द सफा नंबर 164 है। यहाँ पर भी वो अल खातम मिन अस्मा इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा में से है। फित तंजील अजीज, कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबियीन आई, यानी आखिरुहुम, तमाम नबियों के आखिर में आने वाला। मजमा बिहार रिल अनवार, जनाब अल जुज़ु सानी 2री जिल्द सफा 11,
यहाँ पर भी अल खातम और अल खातिम का तर्जुमा इन्होंने यही किया है कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से है और इसका मतलब होता है आखिरी। तो इन्नियां लुगतां बड़ियां कि होर दे रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जी। जी मैंने आपसे एक चीज पूछनी थी, मैं बड़े दिनों से मैं ट्राई कर रहा था, नहीं लग रही थी कॉल जी। उम्रा के हवाले से। उम्रा मैंने किया है और उम्रा नहीं जी, करने के फिकी बाद मामलात नहीं भाई जाना, हम यहाँ कादियानियत डिस्कस करते हैं। सिर्फ एक चीज मुझे बता देना। नहीं, एक चीज हो या दो चीजें हो, हम आपने करीबी किसी आलम दिन से जाके पूछे। बहुत से उलमाए कराम है दुनिया के अंदर करोड़ों की तादाद में, तो उनको भी थोड़ी सी तकलीफ दिया करें, मुलाकात रखें ना उलमा के साथ। उलमा को मिलते नहीं है आप लोग और बस सोशल मीडिया पे ही मसले पूछ लेते हैं, ये कुछ नहीं नहीं नहीं, मैंने दम के हवाले से कोई नहीं अपने करीबी उलमा से पूछे, जाके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वो मैंने ना वो 2 हवाले पूछने थे, वो जरा अगर आप स्क्रीनशॉट दे दें या जैसा भी मुनासिब समझे। जी। जो उधर बात हो रही थी हुसैनी की ब्रॉड पे, जो वो अपना शराबी भी है और जानी भी है, मिर्जा कादियानी। जी जी। हाँ चलो जी, मैं हवाले देना। मेरे ना दाड़ दे विच दर्द है ते ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। अच्छा शराबी वाला, अच्छा शराबी वाला हवाला। किताब का नाम है, ये ले मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूं यूट्यूब के ऊपर। ये ले जी, खतूत इमाम बनाम गुलाम। ये मिर्ज़े कादियानी ने खत जो लिखे थे हकीम मोहम्मद हुसैन कुरैशी को लाहौर, तो वो सारे खत उसने एक जगह पे जमा कर दिए हैं, तो उसका नाम रखा है खतूत इमाम बनाम गुलाम। तो ये कादियानी था, ये हकीम भी, तो कादियान से ये चीजें मंगवाया करता था खत लिख के। तो यहाँ पे वो खत है, अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मियाँ यार मोहम्मद भेजा जाता है, आप शेख खुर्दनी खुद खरीद दें और एक बोतल टॉनिक वाइन की प्लूम्बर की दुकान से खरीद दें, मगर टॉनिक वाइन चाहिए, इसका लिहाज रहे। ये है वो हवाला जनाब। और कोई हवाला? और जो वो अगर वो जरा स्क्रीनशॉट मैं ले लूं उसका तो। अच्छा एक स्क्रीनशॉट लेना है आपने। ये लीजिए, ये पूरी, ये पहले तो इसका ले लेना स्क्रीनशॉट। ये ले लिया? ले लिया जी। अब इस हवाले का ले लें। जी ले लिया, जज़ाकल्लाह शाह जी। और जो वो जानी वाला भी जरा वो भी करवा दें। अच्छा जी, जानी वाला भी हवाला। अच्छा एक मिनट है। जानी वाला तो बल्कि इधर ये अखबार मेरे सामने रखा है इधर। ये जनाब का ये अल फजल अखबार
صفحہ یہ 31 اگست 1938، 31 اگست 1938، 31 اگست 1938۔ ٹھیک ہے جی لے لیا شاہ جی، لے لیا۔ یہاں پہ اس کا صفحہ نمبر 6 ہے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، وہ صحیح نظر نہیں یہ میں تھا۔ پڑھ کے سنا دیتا ہوں نا، ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جی پڑھ کے سنا دیں۔ یہ قادیانی لوری تھا ایک، اس نے یہ خط لکھا تھا کہ حضرت مسیح موعود ولی اللہ تھے، اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے، مگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا؟ پھر لکھا ہے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود پر اعتراض نہیں، کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کرتے تھے، ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے، کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا؟ ہو گیا شاہ جی، ہو گیا، جزاک اللہ شاہ جی۔ الفضل اخبار 1938 کا ہے، 31 اگست 31 اگست۔ ٹھیک ہو گیا شاہ جی۔ اچھا جی، اور کون کالر آئے؟ کاشف کوئی بات سناؤ بھائی، کچھ سنا دیں، امی کوئی سنا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ سنا دیں جی۔ شیطانی خزائن 479 پیج پہ 5ویں لائن پہ جو اس میں لکھا ہوا ہے، یا آدم اسکانا وزوجہ اس کے آگے وزوجہ، ایک منٹ، یا آدم اسکن انت و زوجوک الجنہ، تو اس نے اس کا یہ مرزا قادیانی وہ کہتا ہے وہی نازل ہوئی ہے میرے اوپر۔ تو زوجہ کا مطلب ادھر جو ہے وہ ہو گیا بیوی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب صفحہ نمبر جو ہے وہ 483 اس کے اوپر جو اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں اور میری بہن جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ کیا بات ہے، یہاں سے کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ میاں تیمور نے یہ پڑھا تھا تو اس کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا تھا، تو وہ اب اس سے یہ نتیجہ نکلا، تو اس کو جو ہے وہ پھر ہم اکثر جو بہن کی گالی ہوتی ہے وہ دے کے بلا سکتے ہیں۔ جو مرضی تسی جن مرضی بلاؤ، تانوں کنے روکنا؟ ہر بندہ آزاد ہے، فریڈم سپیچ ہے بھائی، جو مرضی جنوں مرضی جن مرضی پکارے۔ اب یہ بولی کیا ہے، اس نے پیچھے کیا لکھا ہے اور یہ آگے کیا لکھ رہا ہے؟ نشے میں لکھ رہا ہے یہ، اور یہ وہ ساری اس نے کتابیں نشے میں لکھی ہیں۔ کیڑی کتاب ہے جڑی انہیں حاضر دماغی چ لکھی ہے؟ کوئی ایک دس دیو۔ یہ نیچے کوئی عبداللہ بھائی آئے ہیں، ان سے بات کر لیں۔ جی عبداللہ صاحب۔ السلام علیکم جی، مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، آپ سنائیے جناب۔ مفتی صاحب میں انجینئر صاحب کو سنتا ہوں، آپ کو بھی سنتا رہا ہوں، لیکن ابھی آپ کی یہ لائیو آئی ہے سامنے تو میں نے کہا چلیں ہم تو سیکھنے والے ہیں، ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سے حق بات ملے گی تو آپ سے لیں گے، ان سے ملے گی تو ان سے لیں گے۔ اچھا کوئی بتائیے نا، کوئی انجینئر صاحب کی کوئی حق بات بتائیے ہمیں، کوئی سنائیے کوئی اچھی سی بات ہے۔ سر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ دیکھیں یار، ہمارے جو مطلب اہل سنت کے جو سارے فرقے تھے، جیسے میرے کچھ دوست بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، تو یہ اتنے عرصے سے تھے، تو ایک بندہ اس طرح آیا، یہ میں مطلب اخلاق کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں، مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اٹیک کر رہا ہوں کسی کے اوپر،
اپنے دل کی جو بات ہے وہ رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہم لوگ جو یوتھ ہے ہم کیوں اس طرف زیادہ گئے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اتنے بڑے مطلب پرانے فرقے تھے تو ان کو بدلنے کے لیے اس بندے نے ویڈیوز کا سہارا لیا تو اس نے بدل دیا. اب جو حق اچھا والے بس یہاں فرقے رک تھے جائیں، ان بس کو یہاں سامنے رک جائیں یہاں پہ. ایسا بات جی کریں، جی تھوڑی تھوڑی بات آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے فرقے اور اتنے عرصے کے تھے تو ایک شخص نے آ کے فرقوں کو بدل دیا، یہی کہا نا آپ نے؟ پوائنٹ میرا کچھ اور تھا لیکن چلیں آپ ابھی بتا دیں. تو ایسا بات کر لیتے ہیں. یہ کہا نا آپ نے کہ اتنی دیر کے فرقے چل جی رہے جی تھے، ایک شخص نے آ کے فرقوں کو جی بدل دیا، ایسا ہی ہے؟ نہیں فرقوں کو نہیں بدلا، مطلب ایک یوتھ کی اچھی خاصی اماؤنٹ کو اپنی طرف کھینچ لیا. نہیں پھر یہ تو وہ آپ لوگ بھی نہیں، سارے کہتے پھر ہیں نا. آپ یہ کہیں اب کہ اتنی دیر کی یوتھ تھی تو اس اچھی خاصی جی یوتھ کو اپنی طرف کھینچ لیا، آپ یہ کہیں. ہاں جی 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 بالکل ہاں یہ بالکل. کہیں کہ یوتھ یہ ایک تو عرصے مطلب کی آپ تھی، لوگ بھی کہتے ہیں نا. ایک عرصے کی یوتھ تھی، اب بیچ میں فرقوں کو نکال دیں. اب کہیں کہ جو یوتھ ایک عرصے کی چل رہی تھی اس یوتھ کو اس نے اپنے ساتھ لگا لیا، یہ کہیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے، کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں مفتی صاحب میرے کچھ دوست بھی کلاس فیلو ہیں، وہ بھی عالم ہے نا، تو ان کے ساتھ بھی وہ مجھے کہتے ہیں یار اس کو سننا نہیں چاہیے سننا نہیں چاہیے. تو میرا صرف ایک یہ سوال ہوتا ہے کہ یار سننا کیوں نہیں، مطلب اتنا ہماری دلائل اتنی کمزور ہیں کہ ہم اس کو سنیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. ہاں تو اب ہمیں آپ یہ الاؤ دوسری کریں بات آ گئی ہے، اب یہ دوسری بات آ گئی. ایسا بات کر جی لیتے، ٹھیک ہے. ٹکڑوں میں بات کر لیتے تاکہ جی ایک دم سوالات کی بچھاڑ ہو جائے گی، سب کے جوابات دینا اور ان کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو، اچھی بات ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ اب یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ دوست کچھ کہتی ہیں جس کو نہیں سننا چاہیے، تو سوال آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ کیوں نہیں سننا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا. اچھا جی بالکل. یہاں پہ کیا نام ہے آپ کا؟ جی مفتی صاحب میرا عبداللہ اسلام نام. آباد سے ہوں میں. اچھا عبداللہ بھائی، تو سرے 10 ایک ویڈیو میں چلاتا ہوں تو یہ سنانے لگا ہوں آپ کو، میں خود سنانے لگا ہوں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اس ویڈیو کو سننا ہے یا نہیں سننا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، یا آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ سننی چاہیے کہ نہیں سننی چاہیے. ٹھیک ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے ہاں تو چلیں جی اب میں ویڈیو چلانے لگا. بھائی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. تم لوگ یہ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم علی بھائی سے علمی اختلاف کرتے ہیں تو علی بھائی جو ہے وہ ہمیں آگے بدوائیں دیتے ہیں. تو ظالموں علمی اختلاف کون سا کیا ہے تم لوگوں نے؟ تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا، اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تے شاہی کوئی نہیں. اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو. بھائی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. جی کیا فیصلہ کیا پھر آپ نے؟ جی مفتی صاحب میں انشاءاللہ تھوڑی سی امید کروں گا کہ آپ مطلب تھوڑا مجھے کھلے اس سے دماغ سے سنیں گے تھوڑا سا. ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی بڑی عزت میں کرتا ہوں. نہیں اچھا کوئی مفتی نہیں. صاحب مجھے لگتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ویڈیو سننی چاہیے کہ نہیں سننی چاہیے؟ میں تو صرف ابھی یہ جی مفتی صاحب میرے نزدیک تو، کیونکہ میرے پاس اس کا مطلب ایک جواب ہے، میرے نزدیک تو سننی چاہیے. کیوں سننی چاہیے؟ ٹھیک ہو گیا، اب فیصلہ ہو گیا. اچھا کیوں سننی چاہیے اب وہ وجہ بتا دیں. مطلب اسلام کے اندر ایسی توحید کہ توحید بیان کرنے کے لیے تمہیں ایک گستاخی کرنی پڑے گی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسی توحید کا درس ہمیں کیا یہ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، یا یہ 1200-1400 سال ہو گئے ہیں کسی بابے بزرگ کی کتاب میں لکھا ہو؟ جی ٹھیک ہے. ہاں میں وہی کہہ رہا تھا مجھے. اچھا مفتی صاحب جتنا میرا ناقص علم ہے مجھے تو یہ بات ایسے سمجھ آئی ہے کہ دیکھیے جیسے
آپ نے تو بہت دفعہ سنی بھی ہوگی کہ جیسے اب عیسائی ہیں نا، میرے کولیگز بھی ہیں کہیں، تو اب ہم ان کو اگر بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا اٹھایا، تو وہ اس کو بہت بڑی گستاخی سمجھتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں ان کو بھی ہم یہی کیا بات گستاخی بولتے نہیں ہیں. سمجھ آئی؟ کون کس کو گستاخی سمجھ رہے؟ عیسائی کس کو گستاخی سمجھتے ہیں؟ اگر ہم عیسائیوں کو قرآن بھی سناتے ہیں نا کہ دیکھو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اللہ سے کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سمجھ والی جو صورت ہے وہ ہم سناتے ہیں، تو وہ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بول تم رہے ہیں. پاگل تو نہیں ہو. نہیں غلط نہیں سمجھتے وہ. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. اچھا نہیں ایسا نہیں، آپ جھوٹ بہرحال چلے. اچھا نہیں. ایک چلے منٹ سن لیں، یہ پہلے سن لیں. جی آپ روزانہ ہمارے پاس کرسچن دوست ہمارے بیٹھتے ہیں، جی ٹھیک، روزانہ یہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، وہ تو نہیں گستاخی ٹھیک ہے. ہاں مفتی اگلی صاحب بات. لیکن میرے اب کو کچھ اگلی بات لگتا کریں، ہے اس کو فوکس کریں کہ توحید بیان کرنے کے لیے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنی پڑے گی. یہ آپ نے کہاں پہ پڑھا ہے؟ قرآن میں یا حدیث میں یا کسی کتاب میں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں. اچھا مفتی صاحب، یہ جملہ اٹ سیلف یہ تو واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو مطلب اس کے اخلاق کے بالکل دائرے میں نہیں آتا، لیکن وہ جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ جو فرقوں نے اتنا کچھ بنا دیا نا، جیسے اب شیعوں نے 12 امام کر دیے، ان کو ہم اگر کچھ سمجھائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں یہ تو تم اماموں کی گستاخی کر رہے ہو. تو اسی طرح کچھ بریلوی مکتبہ فکر کے جو کچھ لوگ ہیں نہیں تو موضوع انہوں نے دیکھیں، ایک منٹ، ایک موضوع پر ایک مرکز پر ایسے رہیں گے نا تو وہ پھر کام صحیح رہے گا. اگر ادھر 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 جاتے جائیں گے وہ الجھ ہی رہنا ہے، وہ پتہ نہیں کدھر دور کے دور ہی چل. صرف اس چیز کو آپ فوکس کرنا ہے. توحید بیان کرنے کے لیے گستاخی کرنی پڑے گی نبی کریم کی. کیا قرآن کے اندر کوئی آیت آپ کو نظر آئی عبداللہ بھائی؟ نہیں ایسی آیت تو، لیکن ایک منٹ میں چند سوالات آپ سے پوچھ لیتا ہوں. قرآن میں آپ کو نظر آئی یہ بات؟ نہیں قرآن وہ تو میں نے پہلے بولا ہے کہ یہ جملہ نہیں اس طرح. قرآن میں نہیں ہے. حدیث میں کہیں نظر آئی آپ کو؟ نہیں. کسی بابے بزرگ نے 1400 سال کی اتنی لاکھوں کتابیں لکھی گئی، یہ پیچھے بھی آپ کو اتنی نظر آ رہی ہے، کسی کتاب میں کوئی پڑھا؟ اچھا کسی مولوی نہیں کوئی بتا دیں؟ نہیں مفتی صاحب کسی نہیں. ہاں تو یہ اصل میں اپنے استاد ایک اس کا مولوی ہے، وہ میں تو اس کے منہ سے ہی اس کا تعارف سنا تھا پہلے. میں اسحاق صاحب، ہاں وہ ان کو میں نے جانتا ہی نہیں تھا، پہلی دفعہ اس بندے سے سنا تھا کہ وہ بھی کوئی ہے. تو بہرحال تو ان کی بات کو آگے پھر یہ رپیٹ کر رہے کہ وہ کہا، تو اس نے بھی پتہ نہیں یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی، حالانکہ ان کے اپنے اصلی شاگرد یہ سنے تو صحیح جی سن مرزا قادیانی تو مرزا جونیئر جیل میں تو جھوٹ بولتا ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں. ان کے اصلی شاگرد سے میری بات ہوئی، میں نے یہی چیز ان سے پوچھی کہ کیا انہوں نے کبھی یہ کہا یا یہ وہ کہا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اچھا یہ مرزا جونیئر جیل میں نے فراڈ کیا ہے، ایک غلط بات کو مولانا اسحاق کی طرح منسوخ کیا. اچھا یہ بات کلیئر ہو گئی. اگلی بات یہ ہے کہ سنے تو صحیح، یہ تو عالم بھی نہیں ہے، جاہل آدمی ہے، پلمبر آدمی ہے. تو مولانا اسحاق تو پھر بھی وہ سنیں، مجھے نہیں پتا واللہ عالم کہ وہ باقاعدہ عالم تھے. تو وہ عالم تو کوئی بھی ہو نا، علم بڑی چیز ہوتی ہے، علم بڑی چیز ہوتی ہے. عالم ہوتا ہے، اس نے بڑی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، قرآن کو دیکھنا ہے، حدیث کو دیکھنا ہے، اور اس نے کئی اصول ضابطے قاعدوں کو دیکھنا ہے، پھر جا کے وہ کلام کرتا ہے. ایسے نہیں، وہ چاہے کسی بھی مکتبے فکر کے، کسی بھی مکتبے فکر کے عالم ہوتا ہے. تو علم اور جہل برابر نہیں ہو سکتا، یہ تو قرآن بھی کہتا ہے نا. وہ تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ وہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ مولوی اسحاق صاحب نے یہ بات کی ہو؟ ان کو نہیں پتا کہ کیا یہ توحید ہے. اور حالانکہ وہ غالباً اہل حدیث ہیں، اہل حدیث ہیں نا اسحاق صاحب، وہابی جن کو کہتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا ان کے بارے اتنا نہیں پتا. تو لیکن اور وہابی تو توحید کے بڑے وہ مطلب پرچارک ہیں.
اور درس دینے والے, उनसे फिर आगे ये तवक्को कर लें कि वो तौहीद इस किस्म की बयान करें कि देखो जी तौहीद बयान करने के लिए तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करनी पड़ेगी. तो ये बहरहाल ये गप्पे मारता है, झूठ बोलता है, जाहिल आदमी है, जाहिल मुतलक आदमी है. इसने ये गप मारी है बहुत बड़ी, और ये बहुत बड़ी तौहीन की है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम. तो चले गए ये मेरे दोस्त जिनसे मैं बात कर रहा था. हेलो जी चला गई. नहीं, आप वापस आइए और बैठ के बात करते हैं, कोई मसला नहीं. फिर क्या हुआ, हमने आपको समझाना है, समझाएंगे हम आपको, आपने सामने बैठ के गुफ्तगू करते हैं ना. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. मुफ्ती साहब. जी वालेकुम सलाम जी. मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत सलाम आपको. मेरा एक सवाल था मिर्ज़ा साहब के बारे में, अगर इजाज़त हो तो मैं कर सकता हूं? जी करें, जी करें. मेरा सवाल असल में मिर्ज़ा साहब के बारे में ये है कि बहुत अरसे तक मैं उनको सुनता रहा हूँ, ठीक है. तो शुरू में तो मैं उनका यानी कि बहुत कह सकते हैं कि दीवाना जैसे बंदा होता है. जब वो बात किया करते थे तौहीद पे, तो उसके अलावा उनके कुछ शुरू के लेक्चर्स भी बहुत अच्छे लगे, तो उनकी तरफ हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए. अच्छा. तो जब जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुजरा तो फिर मैंने एक चीज़ नोट करना शुरू की कि वो एक काम करते हैं कि वो 2-3 मसलकों को पकड़ के तो रगड़ा लगाते हैं, लेकिन एक मसलक को वो छोड़ देते हैं बिल्कुल. अच्छा तो यह बात सुने जरा, एक हालांकि मिनट वो आप, एक मिनट MA के साहब, एक मिनट. वो फिर बात में इन्होंने एक बात की थी, वो भी याद मुझे आ गई है कि मिर्जा साहब ने इन फिरकों को खत्म कर दिया. यही बात मिर्जा कादियानी भी करता था. वो कहता था कि मैंने कसरे सलीब कर दी है और ईसाइयत को खत्म कर दी है. और वो भी यही कहता था कि मैंने इन फिरकों को खत्म कर दिया. मिर्जा कादियानी यही कहता था, वो कहता है मैंने फिरकों को खत्म कर दिया, मैंने कसरे सलीब कर दी, ईसाइयत को तोड़ दिया, ईसाइयत खत्म कर दी. और बड़ी हैरत की बात यह है क्योंकि वो अहादीस के अंदर जिक्र है ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो वो कसरे सलीब करेंगे, जंग को खत्म कर देंगे. और लेकिन पहले जंग करेंगे, जंग खत्म बाद में हो रही है, अमन और शांति और सुकून तो बाद में आना है, पहले जंग होनी है. हाँ, तो लेकिन मिर्जा कादियानी ने उसकी ये तवीलें की कि वो असल में देखो मैंने जहाद के हराम होने का फतवा दे दिया ना, तो इसलिए मैंने जंग खत्म कर दी है. हालांकि जहाद खत्म तो नहीं ना हुआ, जहाद तो नहीं खत्म. मेरा अगर इजाजत सुने जरा. तो वो मिर्जा कादियानी भी यही कहता था कि मैंने ईसाइयत खत्म कर दी, फिरकों को खत्म कर दिया. हालांकि वो ईसाइयत वैसी की वैसी खड़ी है, पहले से ज्यादा ईसाइयत बढ़ गई है, पहले से ज्यादा जंगो जदाल शुरू हो गई. 2 बड़ी जंगें जो है ना वो मिर्जा कादियानी के मरने के बाद हुई हैं. फिर ईसाइयत भी बढ़ी है और फिरके भी बढ़े हैं. यही काम मिर्जा जूनियर जेल में कह रहे लो फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन. वो कौन से फिरके की दुकान बंद की? ये देखो मुफ्ती बशर की अभी दुकान खुली है तुम्हारे सामने ही है. यार एक मिनट थोड़ा सा मेहरबानी करें, मुझे बात का कोई रबत बना लेने दें, आप बाद में कर लीजिएगा. वो असल में ये जवाब पहले देना था, वो चले गए दोस्त, मुझे एकदम याद आई है, आप बाद में कर लीजिए, मैं आपकी सुनता हूँ. आप बैठे थोड़ा सा सब्र तहम्मुल, मैं बाद में, अगर जल्दी है तो आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं. नहीं मैं सवाल पूरे करके जाऊंगा ना आपसे. हाँ, सुने जरा. तो गुजारा ये है कि कौन सी द डैमेज हैज बीन डन हुई है, वो हमें भी तो बताओ ना. कोई डैमेज हैज बीन डन हो गई है, फिर क्योंकि दुकानें बंद हो गई हैं, तो इतना ही अगर तुम वो कहते हो जी ये सारे फिरके अब हो गए हैं, मेरी एकेडमी के ऊपर ईमान ले आए हैं, तो ये है तो वो है, तो बंदे तू 4 बिठाए होंगे ने उत्थे एकेडमी दे विच. हालांकि तुम्हें वो पूरा जेलम घेर लेना चाहिए. मतलब ये कि तुम्हारा दर्स हो हफ्ते बाद, पूरा जेलम में जगह ना मिले. हाँ, वो बल्कि वो साथ गुजरात है, वो लाला मूसा है, वो खारी है, यहां तक अवाम आ जाए. हाँ, बल्कि गुजरात वाला तक अवाम पहुंच जाए ना, रोड पर जान. इतनी अवाम होनी चाहिए तेरे हफ्ते के दर्स के अंदर, जितना तू रोला डालता है ओ द डैमेज हैज बीन डन, फिर क्या करना बंद, सारी दुनिया मेरे ते ईमान ले आई है. वो किथे यार, सामने जो बंदे बैठे होते हैं, वो जो तकरीबन 35 या 40 बंदे जो बैठे होते हैं, उनमें से ज्यादातर कादियानी होते हैं
राफसी होते हैं और एथीएस दैरजी होते हैं। ये 3 तबके होते हैं। मुसलमान तो उधर एक भी नहीं होता। मुझे तो नहीं, आज तक मैंने वो वीडियो बड़ी दफा देखी है, मुझे नहीं कोई नजर आया। हाँ जी, अब आप बात कर सकते। हाँ, आप ठीक फरमा रहे हैं, क्योंकि एथियस्ट और ये जो एग्नोस्टिक लोग हैं, इनके बारे में जो इनका होता है ना, यानी कि इनका जो ख्याल है वो बहुत ही नरम मिजाजी से उनसे बात करते हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है, क्योंकि उनकी लास्ट पॉडकास्ट आई थी, वो उनके साथ वो एक थे, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो उनका जो उस टाइम पे टॉपिक था वो यही था। तो उन्होंने यही बोला था कि आपकी जो बातें होती हैं मैक्सिमम आप ठीक है अनजाने में कर जाते हैं, लेकिन उसका फायदा जो होता है वो डायरेक्ट लोगों को पहुंचता है, जो लादीन वगैरह होती हैं, और आपको समझ नहीं आती। तो मैं कहता हूँ यार इसको कम से कम अपना नॉलेज तो पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है, जिन चीजों में पता है थोड़ा बहुत ठीक है, उस पर बंदा बात करता है। जिन चीजों का ना पता हो बंदा क्यों टांग अड़ाए उसमें, पहली बात। और दूसरी बात कि जो रावजी होते हैं उनके बारे में ये खुल के क्यों नहीं बात करता। बाकियों को तो अल्लाह माफ करे ऐसे रगड़ा लगा रहा है। कादियानियों और राफसियों के बारे में नहीं बोलता। यही मेरा सवाल है, ऐसा क्यों होता है? वही ना, यही दो इसके पीछे हैं, वही इसको प्रमोट कर रहे हैं। कादियानी है या राफसी है, दो ही। चले, अल्लाह खैर करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और एक अगर मैं भाई को एक पर्सनल अगर एज अ ब्रदर में आपको कुछ अगर हुक्म करें, अगर इजाजत हो तो मैं बोल सकूं? जी बोले, जी बोले। तो गुटखा बस ना खाया करें मुफ्ती साहब। हमने गुटखा नहीं मैं खाता, जिंदगी पूरी के अंदर एक दफा भी नहीं मैंने खाया गुटखा। यार वो अल्लाह लग रहा है यार, मुफ्ती नहीं मैं नहीं खाता गुटखा भाई, मैं कह रहा हूँ नहीं खाता, आप कह रहे हैं नहीं खाया करो, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं खाता, मैं पान खाता हूँ। पान नहीं खाया? हाँ पान मैं खाता हूँ, पान अलग चीज है, गुटखा एक अलग चीज है। नहीं किया करें। जी जी, आपका मशवरा सुन लिया मैंने, इंशाल्लाह आपको कोशिश करें। हम जैसा बंदा ये काम करे तो ठीक है यार, आप तो माशाल्लाह मुफ्ती। कोई बात नहीं, कोई बात, बहुत शुक्रिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मौला खुश रखे हम सबको। अल्लाह सलाम। अल्लाह हाफिज़ जी। अगले कॉलर को उठाइए काशिफ भाई। ये कौन है? BA साहब जी। MA आप नीचे चले जाए फिर। जी BA साहब। जी मैंने अभी आपकी बात सुनी है, मैं उसका थोड़ा सा रिप्लाई देना चाहता हूँ। जी आपने कहा है कि वो अपने सामने थोड़े से बंदे बिठा के बातें करता है और अपनी आवाम उसने राफसी और कादियानी बिठाई होती है। बिल्कुल ठीक है। और आपने कहा है कि अगर उसने डैमेज हैज बीन डन करना है तो फिरके तो अभी भी हैं। वाह बिल्कुल ठीक। आपने अपना बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मैं भी बैठा हूँ, और अगर उसकी बात मानते हैं तो गुजरांवाला तक उसकी आवाम होनी। बिल्कुल ठीक है, बात करें, आप बात करें जी, वो लोगों ने सुन लीजिए। अगर वो ज्यादा मजमा बिठाएंगे तो क्या आप उनकी बात मान लेंगे? नहीं, मैंने तो एक बात की है ना, बात उसने भी बात की, हमने भी कर दी बात से कट गई है, खत्म हो गई। उसने एक छोड़ी थी कि वो द डैमेज हैज बीन डन, फिर क्या करना बंद, तो हमने भी बात की है। इतना अगर तेरे पास नफरी होती और इतने लोग तेरे हाथ के ऊपर ईमान लाए होते तो तेरी तो तिल धरने की जगह ना होती। यहाँ गुजराला लाहौर तक आवाम होती तेरी। अकैडमी 35 या 36 बंदे बैठे होंगे, इस सुबह तो बहन की गुंजाइश ही कोनी माशाल्लाह। जी उन्होंने कहा है कि फिरकों की दुकानें बंद हो जाएं, तो आपने अपने आप को फिरका मान लिया? फिर नहीं जी, अब मेरी तो पूरी वीडियो मोहतरम मौजूद है, बल्कि मैं कई दफा इसके ऊपर कलाम कर चुका हूँ। फिरके नहीं है ये मुकातबे फिक्र है। फिरका एक अलग चीज होता है, मुकातबे। हाँ, मिर्जा जूनियर जेलमी को मैं फिरका मानता हूँ, कादियानियों को मैं फिरका मानता हूँ। ये सुन्नी शिया वाबी देवबंदी ये मुकातबे फिक्र है, ये फिरके नहीं है। फिरके की डेफिनेशन अलग है, मकतबे फिक्र अलग होता है। जी हम आवाम ने तो देखा है कि सबसे ज्यादा इल्मी वीडियो उनकी कादियानी। हाँ, बड़ी अच्छी बात की है। तो कोई एक वीडियो बताइए, कोई एक बात सुनाइए मिर्जा साहब की, कोई इल्मी, कोई लोगों को पता चले, हमें भी पता चल जाए। चले उनके चैनल पे आप अगर कादियानियों के खिलाफ वीडियो देखेंगे तो सबसे ज्यादा कादियानियों के खिलाफ उनके चैनल के ऊपर जो मैंने वीडियो देखी है, और उसके मैंने पूरी वीडियो के ऑपरेशन की है, पूरी वीडियो के। ठीक है, मैं अभी आपको अपने चैनल के ऊपर लिए चलता हूँ, और हमारा YouTube का चैनल है खत्म नबूवत टाइम्स, उसके ऊपर हमने पूरी लाइव की है। अच्छा, ये वीडियो आ गई है,
चले मैं यहाँ स्क्रीन भी शेयर करके दिखा दूं। ये हमारा YouTube का चैनल, ये खत्म नबूवत टाइम्स चैनल है भाई, और इसके ऊपर ये देखिए इसकी पूरी वीडियो का, ये इसकी एक वीडियो है कादियानी काफर हैं, ये देखिए। तो ये हिस्सा अव्वल है, ये हिस्सा दोम है, और ये 2 घंटे, ये 2.25 घंटे की गुफ्तगू है, और ये तकरीबन 1 घंटे की गुफ्तगू है। तकरीबन समझ लें कि 3.25 घंटे के अंदर इसकी एक वीडियो का हमने जवाब दिया, और हमने साबित किया कि जनाब मिर्जा जूनियर जेलमी कादियानियों की हमायत करता है, कादियानियों के खिलाफ नहीं बोलता। फिर इसकी एक और वीडियो थी कादियानी फिरका को दावत इस्लाह, इस दावत इस्लाह फिरका की ये वीडियो, इसका ऑपरेशन ये आपको नजर आ रहा है, ये भी देखिए। इसका हिस्सा अव्वल ये है 2.25 घंटे का, और हिस्सा दोम है 3.25 घंटे का। कितना हो गया? 3.25 4 5 घंटे कर लें। हाँ, तो 5 घंटे के अंदर हमने इसकी इस वीडियो का जवाब दिया है कि कादियानी फिरका को दावत इस्लाह, और हमने साबित किया कि मिर्जा जूनियर जेलमी कादियानियों का दिफा करता है, रद्द नहीं करता। उसका फायदा भी होता है ना, मैं आपको एक बात और सुनिए जरा एक मिनट। अच्छा। और ये इसकी जो वीडियो है ना कादियानी फिरका को दावत इस्लाह, इसका बड़ा वो रोला डालता है। मेरी अगर वीडियो देखनी है जो मैंने कादियानियों का रद्द किया, तो वो ये मेरी वीडियो देखो, कादियानी फिरका को दावत इस्लाह, उसी का ही हमने ऑपरेशन किया। जी मेरे भाई, अब आप बात कर सकते। तो मुफ्ती साहब, उसका उनको फायदा भी होता है ना। कितने कादियानी लोग जो आप कह रहे हैं ना कि उनके सामने कादियानी बैठे होते हैं, तो वो कादियानी को छोड़ के मुसलमान बन जाते हैं। नहीं, वो एक भी नहीं, आप एक भी नहीं, वो एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। वो कादियानी उसको लेके चल रहे हैं, कादियानी लोग उसके पीछे पर्दा खड़े हैं, उसको प्रमोट करने वाले। आपको पता है उसके वो जो 4 चैनल है, वो कहता है मेरे 4 साहबी हैं, वो 4 कादियानियों के चैनल है। पता है आपको कि नहीं पता? मुझे तो ये पता है कि आपको पता है कि नहीं? वो 4 चैनल, उसके 4 साहबी कौन से हैं? 4 साहबियों का पता है? आप अपना बताएं। मिर्जा जूनियर जेलमी के 4 सहाबा जो 4 चैनल हैं, उनका पता है कि नहीं? अगर नहीं पता तो मैं आपको सुनाता हूँ। सर उनको छोड़े ना। चले ये वीडियो जरा सुनिएगा, एक मिनट। मौजूद चढ़ गया यार, तो तरतीब से लेके चलने दें ना। आपको क्या टेंशन, क्या है, क्या मसला है आपको? अच्छा एक मिनट जरा यार, आप आउटपुट तो बताते नहीं है, कितने बंदे मुसलमान हुए आपके हाथ पे? मेरे हाथ पे मेरे हाथ पे अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से अबव, मुझे तादाद भी याद है, 1000 से अबव। उनके तो लाखों में। किनके? एक भी नहीं, एक बंदा भी नहीं। हाँ, एक बंदा भी नहीं, झूठ है। अभी ये कल की बात है, कल हमने एक बंदे को कलमा पढ़ाया ऑनलाइन लाइव सारी दुनिया के सामने, लानत डलवाई है मिर्जा कादियानी के ऊपर। अब ये वीडियो सुनिए जरा, ये इसके जो साहबी है, इधर सुन। तो ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे 7 हाकचार यार है। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है जी, ट्रू मुस्लिम ओनली और हदाया पोर्टल। बिल्कुल माशाल्लाह। अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं, और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग माशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं। तो ये देखा, ये 4 जो चैनल उसने बताया ना, ये 4 कादियानियों के चैनल हैं, उनके एडमिन कादियानी हैं। तो ये इसको कादियानियत प्रमोट कर रही है, और कुछ भी नहीं। कादियानी इसके पीछे असल में इसको ग्रांट मिल रही है। वो आपको पता है, ये कहता है मैं कोई चैनल से पैसे नहीं कमा रहा, मैंने कोई चंदा बुक नहीं रखी, मैंने कोई वो लिफाफा नहीं रखा, कोई मैं मांगता नहीं पैसे। असल में इसको ग्रांट मिर्जा मसरूर से मिल रही है, थोड़ी सोच तो भी ज्यादा मंथली ना। अगर वो देवबंद के खिलाफ बात करते हैं तो भी खुश हो जाते हैं कि वो ठीक कर रहा है। हाँ नहीं, वो तो असल में फिरका वारियत फैला रहा है ना। आप इन फिरकों को आपस में, कादियानी भी यही काम करते हैं, तो फिरकों को आपस में लड़वाते हैं। यहाँ दिन भर हम टिकटॉक के ऊपर बैठते हैं,
तो आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, दीगर अगर वो दोस्त शीयत के खिलाफ बात दीगर करते दीगर हैं तो दोस्त देवबंदी देखते को क्यों हैं लड़ते हैं? कि कादियानियों का तरीका होता है कि देवबंदी को वाबी से लड़वा दे, वाबी को शीये से लड़वा दे, शीये को सुन्नी से लड़वा दे। ये ड्रामेबाजी वो कादियानियों का, यही काम वो मिर्जा जूनियर जिल्मी कर रहे हैं, वो तो क्योंकि सारों को मिर्जा सारों को मसरूर वहां की पर तरफ से मिर्जा जूनियर जिल्मी को काशन ये मिला है कि बस इस तरीके से फिरकों को आपस में लड़वा। जी वो आपके जोन में तो फिर वो सारों को लड़वा रहे हैं ना, हाँ वो तो हाँ किसी जी की साइड नहीं ले रहा। जी 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 लड़वा रहे, नहीं लड़वा रहा और नहीं लड़ रहा तो वो राफिदियों को कादियानियों से नहीं लड़वा रहा और कादियानियों के साथ नहीं लड़ रहा। हाँ उसने तो साबित किया है कि कादियानी तो है ही क्या अहले साबित सुन्नत किया? से निकली हुई एक जमात है, कि कहाँ से निकली जमात है? यानी कि वो फिक्र हनफी पे चलते हैं। फिक्र हनफी पे चलते हैं। इसके ऊपर भी मेरी आदत की पूरी वीडियो है, ये उसने गप मारी है, झूठ बोला है। मेरे पास किताब भी मौजूद है, फिक्का अहमदिया ये कादियान। वीडियो क्लिप है ना मिर्जा मसरूर का, सुने तो सही, सुने तो उस लांती कम आप कादियानी। वीडियो क्लिप भी देखे ना, मैंने उसमें वो तो सारा साफ जवाब दिया हुआ है। आप आज पहले दिन आ गए भाई, मैं अब वो सारी बातें अगर कहते हैं तो मैं दोबारा पटारी खोल देता हूँ, क्या मसला है? नहीं उसकी वीडियो आप लेते रहे ना जिसने कहा है कि मैं हनफी तरीके पे चलता हूँ। ठीक हो गया, तो मिर्जा मसरूर की करनी है तो फिरका आपसे निकला हुआ है ना भाई। सुनने तो सही, बात मेरे साथ चलाएं आप। मिर्जा मसरूर की बात सुननी है आपने? जी जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो मिर्जा मसरूर बड़ा है कि मिर्जा कादियानी बड़ा है? वो तो उसका बाप था ना। तो अगर मैं मिर्जा कादियानी की बात आपको सुना दूं तो वो कैसा रहेगा? तो जो अभी जिंदा है जिसकी उसकी भाई बात जिंदे को छोड़ दो, अभी जिंदे को छोड़ो। मैं कहता हूं कि जो लीडर है इस जमात का वो ही अगर कहे कि मैं ये हूं तो फिर चल जाएगा कि नहीं चलेगा? क्या ये हूँ क्या कहेगा वो चलो जो भी कहेगा वो तो मैं अभी किताबें खोलूंगा तो पटारी खुलेगी तो फिर ही है ना, क्या ख्याल है? देखो मैं किसी को अच्छा सुना देंगे, सुना देते हैं। अच्छा पहले तो ये देखिए, ये किताब है मेरे पास, फिक्का अहमदिया, ये कादियानियों की फिक्का की किताब है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि रफ़ा दैन कौन करते हैं? रफ़ा दैन के साथ नमाज कौन पढ़ते हैं? देखें कौन पढ़ते हैं? हदीस में आया है। मैं कह रहा हूं कौन पढ़ते हैं? मैंने देखा है हदीस भी पढ़ते हैं। अहले हदीस पढ़ते हैं, ठीक हो गया। हनफी तो नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते। नहीं। यहाँ पे सफा नंबर 77 है, रफ़ा दैन का पूरा एक बाब बंदा है और इन्होंने ठोक बजा के ये चीज साबित की है कि रफ़ा दैन के साथ नमाज पढ़नी चाहिए और मिर्जा कादियानी के हवाला जात भी दिए हैं। मिर्जा कादियानी रफ़ा दैन का कायल था, ठीक है। ये पहला सबूत मैं दे रहा हूँ, अगला सबूत मैं देता हूँ आपको। नमाज के अंदर हाथ कहाँ पे बांधने चाहिए? नमाज के अंदर हाथ जो अहले हदीस बांधते हैं सीने के नीचे थोड़ा सा। जी इधर ऐसे ही है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो हनफी कहाँ बांधते हैं? वो नाफ के थोड़ा सा। ठीक हो गया। यहाँ सफा 72 के ऊपर नमाज पढ़ने का तरीक यहाँ पे कह रहे हैं अपने हाथ सीने के निचले हिस्से के करीब इस तरह बांधे कि दायां हाथ ऊपर और बायां नीचे हो। क्या ये हनफियों का तरीका है? बताइएगा। बताएं किसका तरीका है, खुद अपने मुंह से इकरार करें ना आप, बताइए। ये यानी कि जो ये नमाज का तरीका किसका है, बताएं तो सही। नहीं हनफी का तरीका, हनफियों का नहीं, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अच्छा नमाज के अंदर जब इमाम के पीछे आप होते हैं, इमाम सूरह फातिहा पढ़ता है तो उसके बाद ऊंची सारी आमीन कौन कहते हैं? अहले हदीस कहते हैं। यार नहीं, अहमदी कहते हैं, ऐसे ना करें। सफा नंबर 92 के ऊपर लिखा हुआ है ऊंची सारी क्या करो आमीन। अच्छा सही है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए दो सजदों के दरमियान दुआ तो कौन पढ़ता है? ये अहले तशहीह तकरीबन अहले तशहीह पढ़ते हैं। जी जी। अच्छा अहले तशहीह भी पढ़ते हैं और शायद ये कादियानी होंगे, मुझे नहीं पता इस चीज का। अच्छा चलो ठीक है। बहरहाल अहले तशहीह का तो मुझे पता नहीं, अहले हदीस का जरूर पता है कि वो दो सजदों के दरमियान थोड़ा सा सुकूत करते हैं और दुआएं पढ़ते हैं। उनको कहते हैं दुआ बैना सजदातैन।
सफा नंबर 111 के ऊपर लिखा है जरूरी ने दुआ बैना सजदातैन। ठीक है, आगे जरा जब इमामत जमात हो रही होती है और जमात में पीछे खड़े होके सूरह फातिहा कौन पढ़ता है, जिसको फातिहा खल्फल इमाम कहते हैं? हनफी नहीं पढ़ते, मुझे ये पता है। हनफी नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते तो कौन पढ़ता है? मुंह के अंदर अंगारा, कुछ ऐसी हदीस है, मुंह के अंदर अंगारा रखे। छोड़ दे हदीसों को, अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, हमने हकायक की तरफ जाना है। वो एक फिकी बहसें हो जाएंगी, क्या ये चीज करनी चाहिए कि नहीं, वो एक अलग चीज, टॉपिक ही अलग है। अभी तो हमने एक शख्सियत का वो करना है और इस इल्जाम का करना है, जो अभी आपने कहा कि मिर्जा जूनियर जेल में कहता है कि मिर्जा कादियानी हनफियों के अंदर से निकले, ठीक है ना, इस चीज को हम तो फातिहा खल्फल इमाम कौन करता है, पढ़ता है? हनफी नहीं करते। कौन करता है, थोड़ा सा बताएं अगर आपके इल्म में है तो। वो भी अहले हदीस ही है। अहले हदीस बड़ी, ये इंसाफ है, ये है इंसाफ, इससे मजा आता है कि इख्तलाफात हजार हों लेकिन बंदे को इंसाफ करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आपने हक गोई से काम लिया है। यहाँ सफा 151 के ऊपर फातिहा खल्फल इमाम का पूरा चैप्टर बंदा है इन्होंने, और वो ही सारी हदीसें इन्होंने पेश की हैं जो कि अहले हदीस वगैरह पेश करते हैं, और रफ़ाई दैन की भी वो सारी गुफ्तगू मिर्जा जूनियर जेलमी की मैंने वीडियो वो देखी है, रफ़ाई दैन वाली सारी हदीसें यहाँ से ली हैं उसने टोटल। ये बुखारी मुस्लिम से हदीसें ली हैं। नहीं, सुने तो सही ना, बुखारी मुस्लिम तो कादियानी भी कहते हैं कि हम बुखारी मुस्लिम को मानते हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा सवाल यहाँ पर ये है, सवाल जरा सुन, सवाल ये था कि मिर्जा कादियानी कहाँ से निकला। अब इस चीज का तो आपको पता लग गया होगा कि वो अहले हदीस से निकला है, कि अभी भी यकीन नहीं हुआ। अगर उसने ये किताब लिखी है और उसने ये सारी तरीके लिखे हैं तो फिर वो लग ऐसी रहा है कि अहले हदीस को फॉलो करते थे, फिका जो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मौजूदा का यानी पहले जब उसने नबूवत का दावा करना चाहा, नबूवत के दावे से पहले वो क्या था और नबूवत के दावे के बाद वो क्या है, वो एक अलग टॉपिक है। हमने ये देखना है वो कहां से आया है। यहां से देखो, यहां से छलांग मार के यहां पे आना, ये है कादियानियत, यहां पे वो है मुसलमान। अब मुसलमानों के मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र है, तो सवाल यहाँ पे ये है कि ये कहां से छलांग लगा के यहाँ पे आया, ठीक है ना? आप अगर ये मानते हैं फिका शाफी से निकले हैं? नहीं, फिका शाफी को मिर्जा कादियानी नहीं मानता था। मिर्जा कादियानी तो कहता नारा लगाता था, ना मैं शाफी, ना मैं हनफी, ना मैं मालकी, ना मैं अहले हदीस, ना मैं झूठी नबूवत क्लेम की। वो बाद में जब उसने फिर तमाम फिका का हर चीज का वो उसने इनकार कर दिया। तो अब क्या आप क्या कहेंगे कि ये मिर्जा कादियानी कहाँ से निकला है? जो किताबों में लिखा है उस बेस पे तो ये लगता है कि अहले हदीस से निकला, और सच्ची बात है, ये झूठी बात नहीं है। मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब का ये क्लास फेलो है। मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब अहले हदीस के बहुत बड़े शेख आलिम है, तो वो खुद लिखते भी हैं कि ये मेरा क्लास फेलो है, हम साथ पढ़ते रहे, ठीक है। तो ये अब आप बताइए, मिर्जा जूनियर जेलमी ने ये जो इल्जाम लगाया है जो अभी आपने उजागर किया था, अब आप मिर्जा जूनियर जेलमी को क्या कहें? वो तो मिर्जा साहब खुद कहते हैं कि मेरा तरीका तकरीबन अहले हदीस के करीब है। मिर्जा जूनियर जेलमी क्या बात बताइए कि मिर्जा जूनियर जेलमी ने ये जो इल्जाम लगाया और आपने अभी जिसको उजागर किया कि मिर्जा कादियानी हनफियों से निकला है या हनफी नमाज वगैरह वो पढ़ते हैं, तो इसके बारे में अब आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं सही आपकी बात समझ गया कि किताबों की रोशनी से ही मालूम पड़ता है कि वो अहले हदीस से निकले। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, ये होता है इंसाफ, ये होता है इंसाफ। और अब आप कहेंगे कि नहीं मिर्जा जूनियर जेलमी तूने गप मारी है, तूने झूठ बोला है? नहीं, उसने तो अभी मिर्जा मसरूर की वीडियो प्ले करके ये बात की। नहीं यार, फिर बात तो वो उधर की उधर सारी गुफ्तगू होने के बाद मेरे भाई मुझे आप फिर ना सबूत के तौर पे कुछ वीडियोस दिखानी पड़ेगी। सुने जरा, बंदा करंट सिचुएशन कोई बात नहीं, अभी क्या है, अभी की क्या बात है। चले अभी के लिए मैं आपको एक वीडियो फिर दिखाता हूँ। अभी वीडियो इधर मैंने रखी है, कादियानियों की वहाबी नमाज, ठीक है।
ये एक व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप है कादियानियों का, तो उस ग्रुप के अंदर ये गुफ्तगू हो रही है और एक कादियानी को जब हमने हवाला पेश किया तो उस हवाले के ऊपर वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। अच्छा देखिए, इस पर क्या एतराज है जी आपको? यहाँ पर हज साहब ने वहाबियों का जिक्र किया है, यानी अहले हदीस मुराद हैं। क्या ऐसा ही नहीं है कि हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं पहले से, चूंकि फ़िक़ही मसाइल में कोई इख्तलाफ नहीं होता, लिहाजा आदमी अहमदी होकर अपने आप को अजनबी महसूस नहीं करता अहमदियों की मस्जिद में जाकर। हाँ, मिसाल के तौर पे हम भी खुतबा जुमा जो है अहले हदीस की तरह और हमारा एक जैसा है कि इमाम साहब वाज करते हैं अपनी ज़बान में, कुछ अरबी में पढ़ा, फिर अपनी ज़बान में वाज किया, फिर बाद में खुतबा सानिया पढ़ा और नमाज पढ़ा दी। लेकिन बहुत सारे देवबंदी, बल्कि तकरीबन सारे देवबंदी और बरेलवी, वो क्या करते हैं, पहले एक लंबी तकरीर करते हैं, फिर 2 अरबी खुतबे पढ़ते हैं। तो वो बंदा जब आएगा हमारी मस्जिद में तो अजनबी महसूस करेगा, लेकिन अगर हदीस आएगा तो अजनबी नहीं महसूस करेगा। समझे आप? इसी तरह हम सीने पर हाथ बांधते हैं, देखा है आपने हमारे हज साहब को भी जी, तो अहले हदीस भी सीने पर हाथ बांधते हैं जी। इसी तरह से वो मैंने फातिहा खल्फ इमाम की बात की, आमीन बिलजहर, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ज़ाहिरी तशाबो जो होता है ये आदमी के लिए आसानी पैदा करता है। तो अहले हदीसों को चंद एक मसाइल में तब्दीली के बाद आसानी के साथ वो अपना उसी फ़िक़ा पर अमल करते हुए जमात में रह सकते हैं। इस मसले में खुद मेरी अपने वालिद साहब से गुफ्तगू हुई, हमारे साहब मरहूम मगफूर से, तो उन्होंने यही कहा मुझे। नेक्स्ट ऑडियो। ये उस दौर की बात है जब अभी मैं जमात के खिलाफ बहुत बातें करता था और हरफ मारमाना मैंने ताज़ा पढ़ी हुई थी। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे समझाया कि नहीं, अहमदियों के साथ हमारा फ़िक़्ह ही, ये उनके अल्फाज हैं, मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि अहमदियों के साथ हमारा फ़िक़्ह ही इख्तलाफ कोई नहीं है। इन्होंने एक नया नबी मान लिया है, हम किसी नए नबी की आमद के कायल नहीं हैं। ये वह है असल इख्तलाफ। और हमारे मेरे वालिद साहब मौलवी मोहम्मद रज़ा लाहौरी साहब की बयानुल कुरान जो है वो पढ़ा करते थे, बिल्कुल पढ़ते थे। मैं खुद सुनाता था उनको, वो नाबीना हो गए थे तो उनको मुताला करवाता था, उसमें से साहिब इल्म थे, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की कुतुब को पढ़ते थे। तो ये ढोंग हो गया, क्या करते हैं आप? इसी तरह देवबंदी, मसलन एक फैमिली देवबंदी जो है ना वो अहमदी हुई, तो उनको जो बुजुर्ग थे अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने जब उनके ऊपर आकर लोगों ने एतराज़ किया कि तू भाई मोहम्मद हुसैन क्यों कादियानी हो गया, तो ये तो उन्होंने कहा भाई गल सुनो, एक बंदे दी शनाख्त दा रौला है, वो नमाज वो कुरान मैंने तो कोई फर्क नहीं लगा दे आखे भी, जेरी मैं उदे पढ़दा नमाज हुए दे पढ़ना, जी मैं उदे रोज़ा रखता सुनिए दे रखना, कोई फर्क नहीं, तो एक बंदे दी शनाख्त दा फर्क है। तो ये बात है, वहाबियों के साथ अहले हदीसों के साथ बहुत ज़्यादा मुशाबहत है, और उससे कमतर अहले अपना देवबंदियों के साथ है। देवबंदी में फिर जो ममाती हैं वो ज़्यादा करीब हैं हमारे, फिर हयाती ज़रा दूर हैं, बरेलवी बहुत दूर है। बरेलवियों के अंदर बिदात बहुत ज़्यादा है, सच्ची बात है। उनको तो पहले मैं अगर कहूँ तो आप बुरा मना जाएंगे, पहले मुसलमान करना पड़ता, फिर अहमदी करना पड़ता, जिन्हें क्यास गलत नहीं। आप अच्छा ये जरा सुने, कितनी कमजोर ग्राउंड के ऊपर ये कादियानी फिरका खड़ा हुआ है। फिरका मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि ये सुन्नियों से निकला है, और उससे भी बढ़कर हमारे हनफी देवबंदी और हनफी बरेलवी भाइयों में से निकला हुआ है। ये सुन लिया आपने, वह हनफी देवबंदी हनफी बरेलवी भाइयों से ये फिरका निकला हुआ है। चले उनकी इस्लाह कर देंगे कि यार हदीस से निकला हुआ है। नहीं, इस्लाह कब होगी? हमने तो बड़ी की, वो तो उलमा को तो मानते नहीं, और हमारी तो वैसे दुकानें वो बंद कर चुकी हैं ना। अभी जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है ना मिर्जा मसरूर, वो ये कहते हैं हम हनफी हैं। नहीं, ओहो, कब कहते हैं? झूठ बोलते हैं आप। नहीं, मैंने वीडियो कुछ सुनी है। और पता है कि अब पता है क्या रोला हो गया? अब रोला ये हो गया, जरा समझे, जरा बात को समझे। कादियानी चूंकि उन्होंने सबको साथ मिलाना है, वो अब हनफी भी बन रहे हैं, वो मालकी शाफी हम्बली सब बन रहे हैं, वो देवबंदी वाबी शिया सब बन रहे हैं, वो हिंदू सिख ईसाई यहूदी सब बन रहे हैं, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी ने इन सब का क्लेम किया हुआ है। हाँ, वो तो यही मानता है ना। ये रोला असल में ये है, ये देखिए उन्होंने चूंकि सबको लेके चलना है, सबकी हमदर्दियां इकट्ठी करनी है,
समझ आई कि नहीं? हनफियों को कहेंगे हम हनफी हैं, देवबंदियों को कहेंगे हम देवबंदी हैं, वाबियों को कहेंगे हम वाबी हैं, शियों को कहेंगे हम शी हैं। समझ आई कि ये तरीकाकार है, तरीका वारदात है मौजूदा कादियानी। और मिर्जा मसरूर ने बैठा दिया इसको, मिर्जा जूनियर जेलमी को, कि तू इस तरह की चीजें ना इनके लिए ग्राउंड इख्तियार कर। तो वो पीछे से इसको यही काशन दिया गया, जो काशन मिर्जा मसरूर की तरफ से इसको मिला हुआ ना उसके ऊपर अमल कर रहे। तो ये आप लोगों का ये ना ज़हन इस तरीके से इख्तियार कर रहा है कि कादियानियों के बारे में ना, चूंकि जो पीछे से इसको ऑर्डर मिलता है ये वो बोली बोलते हैं, लुकमा किसी और का मुंह इसका है, तो वो इसको उगल देते हैं। ये असल हो रही है। मुझे तो मुफ्ती साहब एक बात बताया कि मेन बुनियादी अकीदा हमारा खत्म नबूवत का है, जो मिर्जा साहब की वीडियो तादाद है इस बारे में कि अगर वो नबी ही नहीं मानते, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, इसके इसका तरीकाकार होता है, एक तरीकाकार होता है, एक तरीकाकार होता है। देखिए तरीका वारदात अब ये हो चुका है, चूंकि कादियानी नॉमिनेट काफर हो चुके हैं, पाकिस्तान के डिक्लेयर काफर है। जी बिल्कुल। तो भाई अब वो खुल खिला के सुने खुल खिला के वो अगर अपने अकायद और नजरियात की प्रचार करेंगे तो लोग उनको पकड़ लेंगे, लोग कहेंगे बंदा कादियानी है। अब उन्होंने कुछ जवासीस, कुछ जसूस अपने पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में बैठा दिए हैं, ऐसा ही है। जो जिनके ऊपर उन्होंने पग बांधी, दाढ़ियां रखवाई, उनको एक स्कॉलर के तौर पे पेश किया। बिल्कुल ऐसा है। और लुकमा इन्होंने वही, क्योंकि पीछे तक काशन यही था कि भाई जो हमने कहना वो तुमने बोलना, साथ ये नारा तुमने लगा के रखना है कि मिर्ज़े कादियानी पे लानत बेशुमार, और असी कादियानी को नहीं है बस। एक मिनट सुन ले वहां पर भी ऐसे ही करते हैं, कहते हैं कि हम कादियानी नहीं है। जी हाँ। अब इन्होंने ये किया हुआ, रचाया हुआ है कि देखो जी हम ना कादियानी नहीं है, कादियानियों पे तो लानत भेजते हैं, हम खत्मे नबूवत वाले हैं। लेकिन क्या करें, अब ये अंदर से एक ना, अंदर से आप लोगों की जड़ें काट रहे हैं कि भाई अकीदा नजरिया वही चलेगा सारा, सिर्फ एक यही अकीदा तो नहीं मेरे भाई, याद रखिए सिर्फ एक ये अकीदा नहीं है, लाखों कायद और नजरियात हैं। तो वो सारे वो नीचे की सतह के ऊपर है, ऊपर इन्होंने बैठाया हुआ है कि हजूर अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी को यानी खत्म नबूवत, उसका नाम उसका रख दिया खत्म नबूवत। लोगों को ये नजर आता रहे कि भाई खत्म नबूवत, नीचे से वो जड़ें काटे जा रहे, नीचे से हो करके, और वो सारा काम बेहतरीन जो है ना वो मिर्जा जूनियर जेल में कर रहे हैं कि कादियानियों के वो वाले नीचे वाले अकायद को दुनिया के सामने ला रहा है, ऊपर उसने वो रखा हुआ है कि खत्म नबूवत। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई भी दुनिया में बंदा आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करेगा, जितना कादियानी नहीं वो सारे कर रहे हैं मेरे भाई, वो सारे दुनिया कर रही है। आपने हमारा वर्क नहीं देखा, आए रोज बड़े मरजई, सिर्फ कादियानी ही मुसलमान नहीं हो रहे, मरजई भी, यानी मिर्जा जूनियर जेल में के जो फॉलोवर हैं, मरजई लोग भी हमारे हाथ पे ईमान ला रहे हैं, और बड़ी दुनिया बड़ी तेजी से छोड़ रही है। तो अब तो उसकी बेचारे की वो जो कहता था ना द डैमेज हैज बीन डन द फ्रिक्शन का, वो असल में अपनी उसकी एकेडमी अब बंद हो रही है। ये पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है, यकीन जाने पहले उसके 36 लोग होते थे, अब पता नहीं 25 रह गए। तो इतना डैमेज हैज बीन डन तो हो गया है, अभी इंशाल्लाह गिरेंगे और गिरेंगे जी। दिन ब दिन उनकी कबूलियत में इजाफा हाँ वो नजर आ रहा है, सारी दुनिया को नजर आ रहा है। उनके व्यूअर्स भी बढ़े हैं, उनके वो ना मरासी के पुत्र ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो कहने लगा साडे घर आई फिर जवाब देंगा, तेरे को बदला लाऊंगा। अपनी तुसी है ना रोला पा के रखो, जो दुनिया को है वो नजर आ रहा है, सब नजर आ रहा है। जो डैमेज हैज बीन डन तुम लोग कर रहे हो ना, वो सारी दुनिया को पता चल रहा है जी, दुनिया देख रही है, पता चल फिरका वारियत से निकल के फिरका वारियत इन्ने को फिरके कड्डे जे, कोई सानू भी 1-2 फिरका वारियत केड़ी खत्म हुई। अच्छा बहुत गुफ्तगू हमने आपसे कर ली है, और भी कॉलर बड़े हैं यहाँ यूट्यूब पे भी बैठे हैं, तो अगर आप इजाजत दें तो हम आगे गुफ्तगू बढ़ा लें। अल्लाह आपको अजर दे जो आपका दिया जी, अच्छी बात है। तो नीचे चले जाएं आप, ताकि हम किसी और दोस्त से बात करें। यहाँ पे यूट्यूब से हम कॉलर ले रहे हैं, इस्लामुल्लाह भाई आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा हजूर, ये मकतबा फ़िक्र में जो कादियानी हैं मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के, ये वक़्त के साथ साथ चलते हैं। ये सिर्फ नस्लों में मरजून मरकब नहीं था, ये मुकातबे फ़िक्र में भी ना अब मौजूदा दौर में भी ये इसमें भी जो है ना मरजून मरकब बने हुए हैं। वक्त के साथ साथ जो है ना, जिस फिरके में भी जैसा आदमी हो उसके साथ उसी तरह की ये गुफ्तगू करते हैं। और उसके बाद ये मज़ाहिब में भी मरजून मरकब हैं, जिस तरह का मजहब का आदमी हो उसी तरह का ये ना लिबादा ओढ़ लेते हैं कादियानी हजरात। अच्छा, नस्ल में भी ये जो है ना मिर्जा गुलाम कादियानी मरजून मरकब ही है। इसने 5-6 नस्लें हैं मेरी, बल्कि बेशुमार गिनवाई हुई है। इसी तरह इसका अभी जो बेटा है ये जेलमी, मिर्जा जेलमी, ये भी इसी तरह की जो है ना चाल चलने की कोशिश करता है। उसके ना बिल्कुल कदम कदम चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़े ही तरीके से। मगर अब सोशल मीडिया का दौर है, अब तो बहुत तेजी से जो है ना ये चीजें सामने आ जाती हैं। तो ये चीज लोग जो हमारे मुसलमान भाई हैं ये समझते हैं इनको सबको, मगर जो नौजवान नस्ल है उनको समझाना पड़ता है, कुछ वक्त लगता है। तो ये जो है ना हमारे नौजवान ये कुछ बहक जाते हैं, लेकिन वक्ती तौर पे। मगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को जो मानने वाले हैं ना दिल से, वो अपने ईमान पे बरकरार रहते हैं और वो किसी चीज को जो है ना बरवेकार नहीं लाते। तो वो जो मोहब्बत है ना कलमे की, वो उनके अंदर रहती, जैसा भी हो, बेशक नमाज ना पढ़ता हो, वो नशे भंगी चरसी जैसा मवाली हो, जैसा भी, अगर कलमे की मोहब्बत उसके अंदर दिल में है ना, तो वो लाजमी जोश मारती है और अपने वक्त के साथ वो ज़ाहिर हो जाती, सामने आ जाती है। मगर कादियानियों का और मरज़इयों का ये इनको अपनी सिर्फ नाक का मसला बना होता है। ये सिर्फ अपना जो है ना अपने आप को नीचे नहीं गिरने देते, इसलिए जो है ना ये उसमें चले जाते हैं। अपनी इज्जत को पीछे अपनी इज्जत को पीछे नहीं छोड़ते, बल्कि आगे ले आते। दोनों मिर्जों पे भी लानत डाल देते हैं वक्त आने पे। ये वो कौम है। उस्ताद मोहतरम, आपने वक्त दिया, अल्लाह पाक आपको अजर अजीम अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बगदादी साहब आप बात कर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। डबल आवाज हो रही है जी, बोलो जी शाह जी, अब भी डबल आवाज है? नहीं, वो शायद इस्लामुल्लाह भाई दा माइक ओपन हो गया सी। जी फरमाओ। जी शाह जी, सलाम पेश करना सी, बस काफी अरसा हो गया सलाम नहीं से पेश किया। सलाम थी अता मैं YouTube ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। TikTok ਤੇ TikTok ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ TikTok ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ YouTube ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ YouTube ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। हजूर दी बारगाह च हाज़री होवे ते आज दा सलाम अर्ज करना है जनाब। हजूर राती बैठे सां, एक साडे दोस्त आए ने पाकिस्तान तो खत्मे नबूवत दे मुजाहिद, उन्हां दे नाल सईदना मीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी बारगाह च बैठे सां। उत्थे भी तुहाडा जिक्र हो रहा सी, उत्थे भी दुआवां कीतियां। आसफ भाई गए ने? जी जी, उन्हां नाल राती मुलाकात हुई। माशा माशा। ते मेरा सलाम तुसां दोवां ने रल के अर्ज करना जी हजूर। अज इंशाल्लाह रात नूं है प्रोग्राम फिर जान दा, 10 बजे ना टाइम बन गया ते इंशाल्लाह रात नूं जाना है। तो फिर इंशाल्लाह रात नूं फिर इंशाल्लाह सलाम पेश करांगे। अगर तुसीं जागदे होए ते तुहाडी हाज़री लवावांगे सरकार। ठीक है। ते ओ है कि हजूर को इजाजत भी मंगनी है कि इजाजत मरहमत फरमाओ हाजरी दी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जरूर। और जामिया खत्मे नबूवत वास्ते भी अर्जी जी ठीक हो गया वो, ठीक हो।
अच्छा जी जी रॉयल ठीक है, बड़ी मेहरबानी। बार बार आ रहे ने ते जा रहे ने रॉयल साहब हेलो इन्हां दे नाल नेट दा इशू है उमर भाई माइक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अब नहीं होगा इंशाल्लाह, वो मेरा माइक म्यूट था। जी 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 शाह जी, बात ये है कि हमारी जो आवाम है, आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे अदील आप कोई बात करना चाहें? काशिफ बैठे हैं, काशिफ उधर भी है इधर भी है। ताकि जल्द अज जल्द जमीन तो खरीद सके ना। 2 करोड़ की खड़ी जगह जगह है, ताकि ये बन जाए अदारा हमारा, बिला तफरीक मसलक काम करें इसके ऊपर। क्योंकि खत्म नबूवत का काम क्या बरेलवी क्या अहले हदीस, इस पे सब मुत्तफिक है ना। तो जो दायरा बन रहा है वो माज किसी एक मसलक का दायरा नहीं है, ये खत्म नबूवत के हवाले से बनाया जा रहा है, तो उस पर सबको काम करना होगा। कादियानियों को देखें ना, वो आपस में मिले होते हैं, एक ऊपर झूठा बैठा हुआ कज़ाब का झूठा खलीफा जो देख के कुरान पढ़ना नहीं आता, अन्य वाह उसको चंदे देते हैं, अन्य वाह। बिल्कुल ऐसे। तो वो झूठे हो गए अगर ऐसे हैं, तो हम सच्चे हो के कमजोर क्यों हैं अभी? बस जी मैंने यही बात करनी थी। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। बड़ी अहम बात हमारे उमर भाई कर रहे थे। जामिया खत्म नबूवत की एड भी मैं तकरीबन हर वीडियो के अंदर चला रहा हूँ, तो इस तरफ तवज्जो दें भाई, मुखय्यर हज़रात खसूसी तौर पे तवज्जो दें। ये जामिया बनाना है हमने और लाजमी बनाना है। ये फितना और फसाद को ख़त्म करने का एक बेहतरीन तरीका इल्म को बढ़ा दिया जाए, इल्म आम कर दिया जाए, इल्म की रोशनी से सबको मुनव्वर किया जाए। तो जब तकाबले अदयान मज़ाहब की ऐसी दरसगाह एक बन जाएगी तो इंशाल्लाह ये जहालत ख़त्म हो जाएगी और ये लड़ाई झगड़े फसादात ख़त्म हो जाएंगे बस। तो आगे की सोचनी चाहिए, तो आगे इसके नताइज बहुत ज़बरदस्त बरामद होने वाले हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे कौन आए हैं, क्या नाम है जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब इकबाल है, आईडी का नाम अहले वफा लिखा हुआ है। अच्छा जी। अच्छा सर, आपको सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कल जो से हमारे तूफान भाई आए थे, तूफानी जट, अच्छा इनके साथ रहते हुए मुझे महीना डेढ़ हो गया था, मुझे आइडिया नहीं था कि ये हैं। अभी भी 2-3 पे फिर मुझे डाउट हुआ, वो भी आउट ऑफ कंट्री होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं उनको लेके आऊँगा और आप उनको राह रास्त पे लेके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे बंदों को लेके आए लाजमी, अच्छी बात है। अच्छा हमें पता नहीं होता ये इनका क्या हाल है, हमें पता नहीं होता ये। पता नहीं होता, पता करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि वो आपसे ना मसला ईसा अलैहिस्सलाम के मौजू पर बात करेंगे या इमाम मेहदी की। वो टॉपिक पे बात ही नहीं करते। अब ये जो से भाई थे ना, इन्होंने कभी टॉपिक पे बात नहीं की थी, कल अचानक आया तो कल मुझे आइडिया हुआ कि ये है, तो इंशाल्लाह लेके आऊंगा। अच्छा एक दो और ब्रॉडो पे मेरा आपसे क्वेश्चन था जी। हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता इन चीजों का, तो आप हमारे रहनुमाई करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन था कि एक दो ब्राडों पे बैठे हुए थे कुछ लोग, साहबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम पे भोंक रहे थे कि इनको जो सा वो हम कहते हैं ये खलीफा है अव्वल, खलीफा है दोम, खलीफा है सोम, खलीफा है चावर, ये वो चाहरम, वो ये कहते हैं कि ये कुरान मजीद में किस जगह पे लिखा हुआ है? नहीं इनकी ब्राडों पे ना जाया करें, ना जाया। नहीं एक दफा गया था, वैसे मैं जाता नहीं, वैसे वो कहते हैं ना दलील मांग लेते हैं कि नहीं कोई नहीं, जाया ही ना करें, ना जाएंगे तो दलील आपसे नहीं मांगेंगे, क्यों जी जी आपसे क्यों दलील तलब करेंगे? ठीक ठीक ठीक। तो ये भी मेरे ख्याल से कादियानी है जो से इस तरह की बकवास कर रहे होते हैं। जी वो यही लोग हैं, और इन्होंने अब मैंने आपको बताया ना नकाब ओढ़ लिए हैं,
जब किसी गुस्ताख ने अब गुस्ताखी करनी होती है तो तरीकाकार ये होता है, या वो इंजीनियर मिर्जा जूनियर जेएलएम का स्टूडेंट बन के सामने आ रहा है, या वो कादियानी बन के सामने आ रहा है, और इन दोनों के भी पीछे एथीस्ट खड़े हैं, यहूद नसारा खड़े हैं, हिंदू सिख ईसाई खड़े हैं, इस तरह के लोग खड़े हैं जो अब ये जाहिर करते हैं, चूंकि उन्होंने करनी होती है गुस्ताखी करने के लिए वो लिबादा या तो मिर्जे कादियानी का ओढ़ के आते हैं या मिर्जा जूनियर जेएलएम का ओढ़ के आते हैं। ये असल में ठीक, मैं अब क्रिश्चियन कंट्री में होता हूँ, तो यहाँ पर भी हैं क्रिश्चियन कंट्री में, तो उनका पता नहीं चलता कि ये नहीं चलना, थोड़े वही चलना नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पता नहीं चलेगा तुम्हें, पहले ही बताया था कि फितने ऐसे बरसेंगे कि तुम्हें समझ नहीं आने फितना आया कहां से। हाँ, और ना ही कातल को पता होना है कि मैं कत्ल क्यों हुआ, ना मकतूल को पता होना है मैंने कत्ल क्यों किया, और ना मकतूल को पता होना है कि मैंने क्यों कत्ल हुआ। ये दौर है। हाँ, तो ये पता नहीं चलता होता, पता तो नहीं कितने चलना है, तो पता ना चलने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी ईमान को महफूज करें, इन बराडों से दूर रहिए, उलमा की सोहबत में रहिए, कून मा स्वादिकीन, औलिया अल्लाह के साथ रहिए, अच्छी सोहबत इख्तियार कीजिए, और ये बचे रहेंगे इंशाल्लाह। अपनी औलादों को भी आपसे एक और मसला डिस्कस करना था कि मैं पहले नादान था, मुझे नहीं पता था, मैंने थोड़ी सी ये काफरों से ना बहस की, बाद में मुझे किसी ने हदीस सुनाई, जो इनसे बहस करेगा या दलील मांगेगा वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। फिर मैंने तौबा की और दोबारा कलमा पढ़ा। ये इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि हाँ, ना जाया करें आप, ना जाएगा आपके जब इल्म नहीं मेरे भाई, उसके बाद मैं नहीं गया भाई। तौबा अताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहू, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तौबा करने वाला अल्लाह के हुजूर ऐसे ही है जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। तौबा आपने कर ली बस, ठीक है, तो आइंदा कभी ना जाइए। जी हराना कि यहाँ तक हो गया था, व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज वगैरह हो गया, मैंने पकड़ के फिर ब्लॉक वगैरह करके सब कुछ किया। ठीक है। अच्छा चलो, शाम को ना वो उनका तो उस वक्त सुबह का टाइम होता है, शाम को वो बैठते हैं 10-1 बजे, वहाँ पे 5-6 बैठे होते हैं इकट्ठे ही। अच्छा, तो वो पूरा का पूरा एक ग्रुप है कि मुझे तो कल ही पता चला था, तो अगर मैं आपको वहाँ पे दावत दूं तो आप आएंगे? नहीं, मैं नहीं, कहीं पे नहीं जाता। जिसको जो तकलीफ हो वो मेरी ब्राड पे है। चले नहीं, ठीक हो गया। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। कोई बात। थैंक यू सो मच बंडो, थैंक्स, अल्लाह पाक कबूल फरमाए और इसी तरह आप काम अपना जारी रखें। जज़ाकल्लाह। ये हमारा रूटीन वर्क है। जी। अच्छा, काशिफ माइक म्यूट करिएगा। काशिफ मौजूद है आप? मैं यार ब्राड खत्म करनी भाई, तू गल कर ले। 2-3 मिनट चाहिए मैंने। अदील बोल क्या जी? ठीक है जी। शाह जी, एक वीडियो की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। ये एक मरज़ई है, मसीह की पे जाके इसने ये इकरार किया है कि हम अल्लाह के बेटे हैं, बेटियां हैं, वो जो उनके अकायद है ना। मैं आपको वो सुना भी देता हूँ। समझ नहीं आई मुझे, कौन कह रहा है? ये मरज़ई कादियानी के मरज़ई? जी नहीं सॉरी कादियानी जी, कादियानियों की बात कर रहे हैं ना, बड़े मिर्जा जी के फॉलोअर। जी। अच्छा, उसने जी 14 घंटे पहले तकरीबन, मेरी तरफ फजर था तो 14 घंटे पहले ना ये बैठा हुआ था मसीहों की। ये कादियानियों का कीता है वैसे, इकरार वो कर भी लिया, तो आप दिखा भी दे, सुना दे, अच्छी बात है। लेकिन ये कादियानियों का कीता है कि हम खुदा की औलाद है, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये कादियानियों का खुद मिर्जा कादियानी का कीदा कि मैं खुदा भी हूँ, खुदा का बेटा भी हूँ, तो ये इनका कीदा है बाहर। जी शाह जी, मैं फिर उनके भाइयों की यानी कि उनके भाइयों के पास गया, उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो ऐसा मानते ही नहीं, हम तो नहीं, वो यही करते हैं ना भाई। मिर्जा कादियानी ने खुद जब किताबों के अंदर लिखा है, हम जब दलील देते हैं तो कहते हैं नहीं, हम नहीं मानते, ऐसे नहीं मानते। तो ये मानते भी हैं, नहीं भी मानते, इस तरह की मिली जुली कैफियत। चलो मैं सुना देता हूँ आके सुनने वाले के भी इल्म में आ जाए कि ये किस तरह दजल करते हैं। उनके पास जाके कहते हैं कि हमारे तुम्हारे वाले अकीदे हैं, हमारे पास आगे कहते हैं जी हम तुम्हें बिल्कुल बताइए जी। मैं प्ले कर रहा हूँ शाह जी। शाह जी आवाज ठीक है? जी।
अच्छा शाह जी ये पहले खातून बोलती हैं वो हाँ वो ये मुझे रुबीना अकीदा है, रुबीना, और ये बहुत गुस्ताखा है और ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्ताखियां करती है। ये क्रिश्चियन है जी। चले वो तो उनका तो हमें पता है ना कि वो करते हैं, जी वो जी उनका जी तो क्या जी चीजें छुपे हुए नहीं है, लेकिन ये मर्ज़ई की सुने जरा जी। नहीं ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। नहीं जट साहब तो आप अपनी बात करो। ਮੈਂ ਵੀ ਆ। क्या मतलब आप क्या मतलब जुमला दोहराए ना जरा। मैं फारसी तो नहीं बोल गया। चलो एक दफा दोबारा हमारे लिए बोल दें, पुत्र और मैं की पूरा जुमला बोले ना जिस तरह वो खातून कह रही है उस तरह बोले आप भी। तू ये कटना वा मैनू पता वा तेरा टोपी ड्रामा। नहीं पूरा जुमला बोले ना। वाई कटनी मेरी अद्धी कटनी है। लो जी ये देख लें, इनकी मुनाफिकत देख लें। अब ये पूरा जुमला नहीं बोल रहे, ये असल में आपको धोखा देते हैं। जितना सारे पुत्र आ ते धीआं वा। नहीं आप सिर्फ अपनी बात करें। मैं भी आ फिर की मैं कहण ते दिया तू कट होना इनू विचों कट नहीं तो जट साहब तुसी की हो। अब मैं तेनू 17 नहीं दस दिता और बोला नहीं तू इन्ने कटड़ियां विचों आजा। नहीं मैं याद आया नहीं गलत फहमी फिर किसी होर बंदे नू बना जो मैं तेरे सामने दस दिता सारियां नू की दस्या जरा दसी गलियों लगा। अच्छा आप ऐसा करें इनसे दोबारा आप सवाल कर लें। आप सारे रब दे धीआं पुत्तर आ बन सकते हैं, मैं भी हां। नहीं मुसलमानों का क्लियर हो गया शाह जी। क्लियर हो गया। ये अकीदा तो है इनका, इनकी किताबों में लिखा हुआ है ना कि हम खुदा के बेटे बेटी हैं। ये तो कादियानी अकीदा है। ये मैंने अब इनसे पूछना है हुसैनी साहब की ब्रॉड पे जब मर्ज़ई जमा होते हैं ना तो ये मैंने इनसे पूछना है कि हाँ भाई दसो तुसी मानते हो या नहीं मानते। हाँ बिल्कुल। अगर तो और साथ सूरह इखलास को भी फिर ले लेना, हुवल्लाहु अहद लम यलिद वलम यूलद, इनको भी फिर साथ ले लेना। इसीलिए तो हम कहते हैं कि तुम्हारा इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम क्यों कहते हो कि हम मुसलमान हैं। अच्छा जी मैं ना इजाजत अब चाहूंगा, ब्रॉड मैंने खत्म करने लगा हूँ। सारे साहिबान ने गुफ्तगू कर लिया। काशिफ मौजूद हो? काशिफ नहीं है, लगता है कहीं दूर है। चले कोई बात नहीं। तो भाई ये पोस्टर भी आपको नजर आ रहा होगा, इस्लामी दुआखाना, जोड़ों के दर्द, असाबी कमजोरी, मर्दो जन के अमराज मखसूसा के स्पेशलिस्ट। ये असल में पहले भी मैंने ये इस्लामी दुआखाना कोई 10 साल कबल किया, चूंकि हमारा ये खानदानी शोबा है। और वैसे भी मैं तिबिया कॉलेज लाहौर से भी पढ़ा हूँ, फारिग तहसील, तो रजिस्टर्ड हकीम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी खानदानी हमारा शोबा है। तो ये दोबारा वालिद साहब ने तवज्जो दिलाई है कि ये काम दोबारा करो, क्योंकि हमारा खानदानी शोबा है ये। तो वालिद साहब के कहने के ऊपर अब मैं दोबारा ये शुरू कर रहा हूँ। लेकिन ये दुआखाना अब ऑनलाइन ही रहेगा। जिसको कोई दुआई वगैरह चाहिए हो वो व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता करके दुआई हासिल कर सकती है और वो आपको पार्सल आपके घर में पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। तो जो अलामत वगैरह है वो मैं पूछ लूंगा फोन के ऊपर, व्हाट्सएप पे कॉल करिएगा, ठीक है। साथ बता दीजिएगा कि भाई मैंने दवाई लेनी है, तो इसलिए मैं कॉल कर रहा हूँ। रब रखा जी, मुझे इजाजत दें। और जामिया खत्म नबूवत का भी आपने देख लिया, तो इस पर भी तवज्जो देनी है। अल्लाह सलामतियाँ अता फरमाए। तमाम शुरका का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी टाइम। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ठीक है जी। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।
لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.